آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ شہر بنگلور میں کرناٹکا اردو اکیڈمی اور محفل نساء کی جانب سے یوم اردو 2025 ایک شام محبان اردو کے نام شاندار جشن کو منعقد کیا گیا۔ 8 فروری 2025 بروز ہفتہ شام کے 5 بجے KMDC بھون شیشادری پورم بنگلور میں محبان اردو پروگرام کو رکھا گیا، جس میں اردو زبان سے محبت کرنے والے پیاری اردو زبان کے چاہنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی۔ اس پروگرام میں شاندار اساتذہ جو کہ کرناٹکا کے مختلف اضلاع کے اسکول سے سفر کر کے بنگلور تشریف لائے تھے، انہیں یہاں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ یونائٹڈ کاؤنسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر اور محفل نساء مل جل کر اردو زبان کو فروغ دینے اور ان اساتذہ کی کارگزاریوں کو دیکھتے سنتے ہوئے ایک ایسے عمل کو اختیار کریں جو کہ بنگلور شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے تمام اضلاع کے لیے کارآمد رہے۔ ان تمام کی ملی جلی کوششوں کے ساتھ ہی سبھی کو اچھا پلیٹ فارم فراہم کرنا اس پروگرام کا اصل مقصد رہا۔ بتا دیا جائے کہ پورے سال بھر میں وقفے سے اردو زبان کو فروغ دینے اور بہترین کاموں کو انجام دینے کے لیے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور سال کے آخر میں جشن یوم اردو میں کرناٹکا ریاست کے مختلف اضلاع سے اساتذہ ٹیچرز کو بلا کر ان کی کارگزاریوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بتا دیا جائے کہ یہ شاندار ادارے پچھلے 12 سالوں سے اس پروگرام جشن اردو کو نہایتی اہتمام کے ساتھ کامیابی کے ساتھ منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور ہر سال الگ الگ اضلاع کے اسکولز کے اساتذہ ٹیچرز کو یہاں پر بلا کر ان کے کارگزاریوں کو سنتے ہوئے انہیں پیش آنے والے مسئلے مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے۔ یوم اردو 2025 کے جشن کو منانے کے لیے کرناٹکا کے مختلف اضلاع جیسے کہ گلبرگہ، نارتھ کرناٹکا سے کئی سارے لوگ اساتذہ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ مختلف تنظیمیں یہاں پر موجود دکھائی دیں اور سبھی سے اردو اسکول کے متعلق، اردو زبان کے متعلق بات چیت کی گئی تاکہ اردو زبان کو آگے کیسے فروغ دیا جائے، اس مسئلے پر، اس نکات پر غور و فکر کیا جائے۔ یہاں پر کافی تبادلہ خیال کرنے کے بعد مشورے بھی دیے گئے، جیسے کہ سبھی لوگ آپس میں جڑ کر کام کریں اور اپنی اپنی پریشانیوں کو ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ 8 دن میں ایک بار مسئلوں کی اطلاع دی جائے، ساتھ ہی رائٹنگ میں رپورٹ بھی پیش کی جائے تاکہ صحیح سے اس کے لیے قدم اٹھا کر مسئلوں کو حل کیا جائے اور وہاں پر کیسے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے اس کے متعلق معلومات حاصل کی جائے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس شاندار پروگرام کی مزید تفصیلات۔ ایک شام محبان اردو کے نام۔ اس شام کو ہم نے اس لیے ڈیزائن کیا تھا کہ مختلف اضلاع سے ہماری اساتذہ برادری جو آج جشن یوم اردو میں صبح ہم لوگوں کے ساتھ رہی، ان کی اپنی کارکردگیوں کے بارے میں، ان لوگوں کے منصوبے جو اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی فلاح و بہبود کے لیے جو وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس پر کاربند رہ کر انہوں نے اردو کے لیے، اردو کے کاز کے لیے بہت کام بھی کیا ہے۔ ان تمام سے ان کی اپنی کارکردگیوں کے بارے میں ہم تبادلہ خیال کریں گے اور اگلے پورے سال کے لیے ایک منصوبہ بند طریقے سے ہم اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے کا جو تہیہ ہم نے کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس شام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں، میں اس وقت بنگلور کے لنگوسٹک مائنورٹی کے صدر جو یہاں پر موجود ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ بیدر، گلبرگ اور دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی جتنے اساتذہ جو کچھ اپنے کام کے تعلق سے، اپنے اقدامات کے تعلق سے جو اردو کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جو روبہ عمل لانا چاہتے ہیں، ان تمام کو ہم سنیں اور اس پر تبادلہ خیال بھی ہو اور آگے چل کر اس پر سب کاربند رہ کر کام کرنے کا ایک منصوبہ بھی بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بڑی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے، اس سے زیادہ میرے پاس بہت ہی کم ہے۔
कि हम लोगों को दूर की मसाफत तय करके ये लोग आए हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो दिन भर की जो सरगर्मियां रही, जिस उर्दू मोहब्बत के तहत कर्नाटक के दूर दराज के इलाकों से चंद की टिकट कंफर्म हुई, चंद की नहीं हुई, अलग अलग तरीके से पहुंचे और जो है ओडी न होने के बावजूद अपनी जो है छुट्टी को डाल कर जो है कई हमारे असातिज़ा कराम पहुंचे। और आज दिन भर का जो मामूल रहा उन तमाम चीज़ों को अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकूंगा कि जहां तक मेरी ये नज़र जा रही थी, बस इख्तिसार के साथ मैं काम लूंगा, तो जहां तक मेरी ये नज़र जा रही थी उर्दू ही उर्दू नज़र आ रही थी। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा कहना आप जैसे बाशऊर सामीन मैं समझता हूं कि बात को समझ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर्नाटक स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ये एक इदारा या एक तंजीम नहीं बल्कि एक कोशिश थी जिसने एक तहरीक का रूप लिया और इंशाअल्लाह हम तमाम को उम्मीद है कि एक मुकम्मल इनकलाब बनकर जो है पूरे रियासत कर्नाटक पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान पर बर्पा होने वाली है इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ मैं बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा और उनकी पूरी टीम को, बज़्म निसा की पूरी टीम को, जितने भी जो है आज के मुंतज़िमीन हजरात थे उन तमाम को रियासत भर के तमाम उर्दू असातिज़ा की जानिब से, उर्दू बरादरी की जानिब से, उर्दू तलबा और तालिबात की जानिब से और उर्दू के चाहने वालों की जानिब से एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा। यकीनन आज का दिन जो है काफ़ी खुशगवार रहा और इस किस्म के यौम उर्दू मैं समझता हूँ कि हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पर मनाए जाने चाहिए। ये जो है शहर बेंगलोर तक महदूद न रहे बल्कि ये जो आवाज़ या यहाँ से जो खुशबू निकली है या हर घर तक, हर दहलीज तक जो है इसका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जहाँ तक सवाल है कर्नाटक हमारी जो रियासत कर्नाटक अक़लियती असातिज़ा की फलाही तंजीम का, तो मैडम मैं आप तमाम के गोशगुजार एक बात कर दूँ कि यूँ तो आपने कई सारी तंजीमें देखी होंगी, सुनी होंगी और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब इतनी सारी तंजीमें हैं तो क्या एक और तंजीम की ज़रूरत थी। मगर मैं सिर्फ एक ही बात में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि इस तंजीम को इसके नाम से नहीं बल्कि इसके काम से पहचाना जाता है। इस तंजीम को इसके नाम से नहीं बल्कि इसके काम से याद किया जाता है। और आज पूरी रियासत कर्नाटक में अगर जो है एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चीज़ों पर अगर किसी तंजीम ने मुसलसल 3 सालों तक डट कर काम किया है तो वो है कर्नाटक स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल रहे हों, चाहे वो एकेडमिक्स के मसाइल रहे हों। देखिए उर्दू की तरक्की और तरवीज की बातें तो हम तमाम लोग बड़ी बड़ी कर जाते हैं, मगर उर्दू की तरक्की कहाँ से मुमकिन है शर्तिया तौर पर, या अगर हम देखें प्रैक्टिकली तौर पर हम लोगों को क्या किया जाना चाहिए, इन बातों के ऊपर जो है तबसरा होना या जो है अपनी आरा का जो है एक दूसरे तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। तो मैं बज़्म निसा से उर्दू एकेडमी के जिम्मेदारान और जितनी भी जो तंजीमात NGOs हैं, मेरी आप तमाम से यही उम्मीद है कि उर्दू की तरक्की किसी एक शोबे से या किसी समाज की किसी एक इकाई से मुमकिन नहीं है। तो हम तमाम को, समाज की तमाम इकाइयों को, तमाम दानिशवर हजरात से लेकर SDMCs, असातिज़ा कराम, पेरेंट्स, NGOs, हम तमाम को मिलकर, समाज की तमाम इकाइयों को मिलकर इंशाल्लाह अगर हम लोग काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उर्दू फिर से सुरखरू नजर आएगी और उर्दू को जो है फिर से उसी नाम के साथ याद किया जाएगा जिसकी हकदार आज को इस जबान को होना चाहिए था। मैं एक बात यहाँ पे अर्ज कर दूं कि देखिए उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है, अक्सर कहा करता हूँ, वाकई में उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है और मोहब्बतें कुर्बानियाँ मांगती हैं। तो मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि मोहब्बतें क्या मोहब्बतें कुर्बानियाँ मांगती हैं और जब कुर्बानियाँ दी जाती हैं तभी मोहब्बतें सुरखरू होती हैं, तभी कामयाबियाँ सुरखरू होती हैं। इसीलिए जो है कुर्बानी देने का वक्त हम तमाम का है। हम तमाम को हर हाल में जो है जिस लिहाज से भी हम अपने आप को उर्दू के तय पेश कर सके, हम तमाम को काम मिलजुल कर काम करना होगा। इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये है मोहतरमा, हमारी एक दरख्वास्त ये है कि प्री प्राइमरी स्कूल्स का आगाज़ तमाम सरकारी उर्दू स्कूल्स में किया जाए। और अगर मेरी बात आपको अगर सही लग रही हो तो उस बात पे जो है मैं आपकी तालियां चाहूँगा। ये इस बात का सबूत होगा कि आप मेरे साथ हैं। तो तमाम सरकारी मदारिस में उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि 3 या 4 साल में बच्चे कन्वेंट निकल जाते हैं, फिर 6 साल के बच्चे को हम तलाश करें तो कहाँ से मिलने वाला है।
یہ اپنے آپ میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری تنظیم نے پچھلے 3 سالوں سے جو ہے داخلہ جاتی مہم شروع کی تھی، ایڈمیشن ڈرائیو. تو ایڈمیشن ڈرائیوز میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے این جی اوز ہمارے اگر شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اگر آپ کی سرپرستی رہے گی تو انشاءاللہ ہم والدین کو جو ہے کنونس کرنے میں ہمارے لیے زیادہ آسانیاں ہوگی. اور اردو کے جو اسکولس ہیں، اگر میں ان کی بات کروں، دیکھیے اردو کے جو اسکولس ہیں یہ اردو کی فیکٹریاں ہیں گویا. یہاں سے جو پروڈکٹ نکل رہا ہے یہ اردو ہی کا پروڈکٹ ہوگا. تو اگر ہم ان اسکولس پر تھوڑی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ جو ہے جو خواب ہم نے دیکھے تھے انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی یقینی ہوگی. میں آپ تمام سے یہی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے ریسورس پر بھی کام کیا اور ایڈمنسٹریشن پر بھی کام کیا. ریسورس پر ہمارے ذکی بھائی بات کریں گے 2 منٹ میرے بعد میں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ SLC پاسنگ پیکیج کا آج اجرا کیا گیا، اسے بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اردو میڈیم طلباء و طالبات کا جو رزلٹ کم ہمیں نظر آتا ہے، کم سے کم جو ہے ہمارے طلباء و طالبات اس پاسنگ پیکیج کو استعمال کرنے کے بعد کامیاب ہو. اور الحمدللہ جو ہے پچھلے سال اور اس سال ہم نے جو ہے اس پاسنگ پیکیج کو بنا کر پوری ریاست کرناٹکا کے طلباء و طالبات کے سامنے رکھا. اس کے علاوہ جو ہے سیریز گوگل میٹ اگر کسی تنظیم نے بچوں کے لیے چلایا ہوئی ہے تو SLC بچوں کے لیے صرف اور صرف کرناٹک اسٹیٹ لنگوسٹک مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن نے چلایا. اور اس کے علاوہ جو ہے حکومت سے مطالبے رہے ہوں، چاہے کچھ بھی رہا ہو، میرے تمام جو ہے آج بیدر، گلبرگہ، رائچور، بیلگام، چکوڑی، اس کے علاوہ جو ہے اور کہاں سے تھے کوپر، تو دور دور کے مسافتیں طے کر کے لوگ آئے تھے. تو صرف ان کی اردو محبتیں تھیں جو ان کو یہاں تک کھینچ لائی تھی. تو ہم آپ سے یہی ایک امید رکھتے ہیں کہ بزم نساء اور اردو اکیڈمی یا جتنی بھی تنظیمات ہیں انشاءاللہ ان کی سرپرستی بزم نساء، محفل نساء، جی معاف کیجیے گا، محفل نساء یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، میں ان تمام سے ملتمس ہوں کہ آئیے انشاءاللہ ہم تمام مل کر وہ چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں جو آنے والے دنوں میں ایک مکمل گلے گلشن گلزار بن کر جو ہے اردو کی فضا کو پوری دنیا میں مہکا دیں گے. انشاءاللہ ہم تمام یہ ارادہ کریں گے. اور میں پورے ریاست کرناٹکا کے اساتذہ کی جانب سے میں آپ سے وعدہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، اکثر اساتذہ کرافٹ پر جو ہے الزامات لگتے ہیں کہ اردو اسکولز کی زبوں حالی کی ذمہ داری ہمیں پر عائد کی جاتی ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں، مگر ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر اردو اسکول زندہ ہیں تو صرف اور صرف ہم اردو اساتذہ کرام کی وجہ سے ہی زندہ ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہاں سے کہاں پر چیزیں خراب ہوئی ہیں یہ نہ دیکھتے ہوئے کہاں سے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، اس بات پر اگر بحث کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا اور زبان کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور ہمارا جو بیسک ایجنڈا جو رہا ہے اس تنظیم کا وہ ہے 3 بنیادی نکات پر ہم نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا: اٹریکشن، ایڈمیشن اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن. ہمارے جو ہے محترم IAS صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ان کی پوری 5 لوگوں کی ٹیم نے جو ہے 2-3 مرتبہ ہم سے ریویو بھی لیا تھا الحمدللہ. تو ان 3 بنیاد پر ہم نے تنظیم کو رکھا تھا: اٹریکشن، ایڈمیشن اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن. سب سے پہلے ہمیں والدین کو اردو اسکولز کی طرف راغب کرنا ہوگا، اٹریکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے ہمیں ایڈمیشنز بنانی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے کوالٹی آف ایجوکیشن اگر آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو اسکولز کا تمام مسائل کا ایک واحد حل ہوگا انشاءاللہ. اور یہاں پر میرے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور بنگلور سے ہماری سنجیدہ میم ہیں، میری بہن فائزہ ہیں، اور جو ہے دور دور کی مسافتیں طے کر کے دھارواڑ، گلبرگہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ان تمام کا تنظیم کی جانب سے اور محفل نساء کی جانب سے جو ہے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ایک بار آپ ہی کی تالیوں سے آپ ہی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آئے اور انشاءاللہ آج کے دن کو یادگار دن بنا دیا آپ لوگوں نے. انشاءاللہ جب بھی اردو کی تاریخ ختم کی جائے گی تو 8 فروری کو ضرور یاد کیا جائے گا، محفل نساء کو ضرور یاد کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکا تو کرناٹکا اسٹیٹ لنگوسٹک مائنارٹی ویلفیئر ٹیچرز ایسوسیشن کو بھی ضرور یاد کیا جائے گا. تو اسی ایک امید کے ساتھ کہ ہم تمام جو ہے ایک ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اس کارواں کو منزل مقصود تک لے جا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ریسورس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کہ کس قسم کا ریسورس ہم لوگ دے رہے ہیں. تو ہمارے ریسورس کنوینر ذکی بھائی ہیں، میں ملتمس ہوں صرف 2 منٹ کے لیے ان سے کہ وہ آئے اور اپنے ریسورس کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ذکی بھائی کون سے ماحول سے آتے ہیں، کن حالات سے نکل کر آتے ہیں، اور کس قسم کے گھریلو معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں سے اردو کے بچے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں
کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے مل جل کر ایڈمیشن ڈرائیو جو ہم نے سوچا ہے داخلاتی مہم، اس کے لیے جو ہے ہم لوگ گھر گھر جائیں، پیرنٹس کو کنونس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگوں میں ایک خام خیالی پیدا ہو گئی ہے کہ اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بچے کو جو ہے کسی قسم کی کوئی سرکاری نوکری نہیں مل سکتی، اس خام خیالی سے ہمیں نکالنا ہوگا۔ اور ایک بات یہاں پہ غلط یہ تصور کی جا رہی ہے کہ اردو اسکولز میں صرف اردو پڑھایا جاتا ہے، جبکہ اردو اسکولز میں جو ہے سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، ریاضی بھی پڑھائی جاتی ہے، ماحولیات بھی پڑھایا جاتا ہے، اور دوسرے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس بات کو بھی ہم کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہوگا، اور اسی ضمن میں ہم لوگوں نے کام کیا، ہم نے جو ہے لوگوں سے روابط قائم کیے، اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے ایک اور کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے اردو اسکولز کے اساتذہ کرام کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے، ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کا جو کام ہماری تنظیم نے کیا، اس سے پہلے شاید کسی اور نے کیا ہوگا۔ ہم نے جو ہے گوگل میٹس کا انعقاد کیا، ہم نے جو ہے اپنی ویب سائٹ کا آغاز کرنے کا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جو اساتذہ کا وقت بچانے کے لیے اور ان کی محنت کو کم کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ان کے لیے لیسن نوٹس اور الگ الگ جو بھی سہولیات ان کو کلاس روم میں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام میسر کرانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریسورس ٹیم نے ایک اور کام کیا کہ سمجھیے کہ ایک اسکول میں صرف 1 یا 2 اساتذہ کرام ہیں اور 4-5 کلاسیں ہیں، اور کلاسز جو ہے ہینڈل کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو ہم نے یہاں تک کوشش کی کہ ہم نے باقاعدہ ان کے نوٹس کے جو ہے ان کے لیسنس بنائے، ویڈیوز، اور ہم نے پہنچائے اسے اساتذہ تک، اور ہم نے اساتذہ سے اپیل کی کہ صرف جو ہے آپ لوگ اگر ایک اسمارٹ ٹی وی کا انتظام کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے گھر بیٹھے جو اپنے بچوں کو جو ہے پورا کا پورا پڑھا سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک محلے میں جو انگریزی پڑھانا نہیں جانتا، تو اگر وہ چاہے تو صرف جو ہے اگر اسے ریاضی میں مہارت حاصل ہے تو ریاضی کا مضمون پڑھائے، اگر انگریزی اسے نہیں آتا تو ہمارا ریسورس پرسن جو ہے ریکارڈ کر کے ویڈیو پر ہم لوگوں نے ڈالا ہے، اگر صرف پلے کر دیتا ہے تو کافی ہے، بچے بھی سیکھ جائیں گے، معلم بھی سیکھ جائے گا۔ تو اس قسم کا ریسورس بلڈنگ کا کام بھی جو ہے ہماری تنظیم نے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کو مزید اور آگے لیا جائے۔ کیا ہم لوگ اگر آپ کو کلاسز دیتے ہیں اسمارٹ کلاسز، جی تو وہاں پہ آپ اس کا انعقاد کریں گے؟ بالکل میم، انشاءاللہ ضرور۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں میڈم کہ چند ایک جو ہے ایریا وائز اسکولز کو سلیکٹ کرتے ہیں پہلے، تمام اسکولز میں جانے سے بہتر ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے پہلے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ چند ایک اسکولز کو ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں جس میں جو ہے بلو ایوریج اور بہترین اس قسم سے جو ہے زمرے میں لاتے ہوئے 3 اسکولز کے زمرے میں لاتے ہوئے جو ہے ان کی درجہ بندی کرتے ہوئے چند ایک اسکولز کو ہم لوگ جو ہے گود لیتے ہوئے انشاءاللہ وہاں پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں گے میڈم۔ ایک اور کام آپ لوگوں کو کرنا ہے اگر آپ لوگ کر سکیں۔ جی دیکھیے، آپ ریٹائرڈ اساتذہ کو آپ جانتے ہوں گے، جی جو 2 سال پہلے یا اس کے پہلے بھی ہیں، تو ان تمام کی نشاندہی کیجیے گا۔ وہ لوگ جو وہاں پر اگر کہیں قریب میں کوئی اسکول ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، تو ان ریٹائرڈ اساتذہ کو اردو پڑھانے کے لیے وہاں بھیجنا ہوگا۔ کیا اس طرح کا کام کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہم لوگ ایسے ریٹائرڈ اساتذہ کرام ہمارے پاس بھرپور موجود ہیں، ہاں، انشاءاللہ، اور جوش و جذبے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو ان کو یہ کہنا ہے کہ واقعبل ڈسٹینس میں وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ جی، ہم کلاسز کا بندوبست کریں گے، آپ کو جو بھی سہولت چاہیے وہ ہم مہیا کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اساتذہ کو ڈھونڈیے اور ہمیں لسٹ بھیجیے کہ کتنے۔ دیکھیے، اس سال ہم لوگوں کو عہد لینا ہے کہ یہ 8 فروری اور صرف باجا بجانے کی بات نہیں ہے۔ اس سال ہم نے چاہا ہے کہ اب آئندہ سال تک ہم کیا کریں گے اور کتنی ترقی کریں گے، اردو میں کتنے لوگوں کو پڑھائیں گے، کتنی کلاسز چلائیں گے، اور کیا کیا آپ لوگ اپنے سرکاری اسکولوں میں بھی تبدیلی لائیں گے یا پرائیویٹ میں کیا لائیں گے، یہ ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں سے یہی وعدہ چاہتے ہیں ہم۔ جی میڈم، بے شک میڈم، انشاءاللہ کہ ہم کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، فی الوقت تو یہ باتیں ہیں، مگر ان پر جب عمل آوری ہوگی تو انشاءاللہ نتیجہ آپ تمام دیکھیں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمام جگہ پر نہیں، سلیکٹ کرتے ہیں چند ایک اسکولز کو، چند ایک ایریاز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں گی وہاں پر ہم ڈسٹرکٹ وائز ایک ریٹائرڈ اساتذہ کی ایک لسٹ ہم آپ کو پہنچاتے ہیں، تعلقہ وائز یا تو ایریا وائز، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ سینٹر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اساتذہ دیں گے۔ تو ایسا کیجئے گا کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ چاہے 15 دن لے لیں، لیکن ضرور یہ کام کو شروع کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور، تاکہ یہ آج کی جو ملاقات ہے اس کا مقصد جو صحیح ہو۔ اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں میڈم کہ عصر حاضر میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ ہمارے جہاں جہاں بھی ایڈمیشن ڈرائیوز ہوں یا جو ہم لوگ جو ہے اگر داخلہ جات کے لیے پیرنٹس سے جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں چند ایک جگہوں پر, تاکہ جس سے کیا ہے پورے سماج میں جو ہے ایک الگ قسم کا میسج جائے گا انشاءاللہ, اور اس کے نتائج زیادہ خاطر خواہ شاید حاصل ہو سکے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کہا آپ آئے اور پھر اس کا کوئی مطلب مقصد ہی نہیں نکلا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا نا. دیکھیے بہت محنت کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آپ جوڑیے. ہم لوگ کتنے دن زندہ رہیں گے, نوجوانوں کو جوڑیے تاکہ ہمارے ساتھ ہماری آنے والی نسل کچھ سیکھ سکے. تو وہاں کے کتنے نوجوان آپ ہم کو دے رہے ہیں, کتنے اساتذہ دے رہے ہیں, کتنے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ بتائیے. ہم چاہے تو ضرور آئیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے, لیکن پہلے پورا مکمل پلان تو صحیح ہو. اور یہ بتائیے کہ ہم یہاں یہ کام کرنے والے ہیں, اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ اساتذہ سے شروع کریں گے اور اسمارٹ کلاسز سے شروع کریں گے. اس مرتبہ ہم اسمارٹ کلاسز کم از کم پورے کرناٹکا میں 50 کلاسز کھولنا چاہ رہے ہیں. ٹیچر کا بھی انتظام ہو چکا ہے, بہت اچھے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں, بگنرس کو بھی پڑھاتے ہیں, بلکہ آگے اس کے آگے کیا کورس کرنا ہے اس کی بھی گائیڈنس دیں گے. لیکن آپ لوگ آگے بڑھیے اور جس کو آج کے دن کو خالی مت جانے دیجیے گا. ضرور ہم لوگوں سے رابطہ رکھیے, جیسے کہ گوگل میٹ تو آپ کر ہی رہے ہیں. دیکھیے گا گوگل میٹ تو 8 دن میں ایک بار بھی ہو سکتی ہے, پر 8 دن میں ایک بار صرف ہماری تعریف کرنے کے لیے, آپ کی تعریف کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ سوچیں گے کہ آج ہم کتنا آگے بڑھیں. تو یہ ہمیں ضروری ہے کہ یہ ہو ہمارے ساتھ میں. یہ مطلب یہ نہ محفل نساء ہے نہ آپ کی تنظیم ہے. اب ان تمام ایسوسیشن کو جوڑنا ہے. اب تمام لوگ ایک ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور کہاں تک ہم آگے جائیں گے, کیسے کرنا ہے. آپ جہاں کہیے, اگر مختلف اضلاع کے لوگوں کو بلا رہے ہیں بلائیے, ہم تمام آئیں گے آپ کے پاس. پر ہم لوگ بنائیں گے ایک میٹنگ طلب کر کے, اور آپ کے سامنے ایک خاکہ ہم لوگ پیش کریں گے کہ کس ضلع میں کس قسم کا کون سا کام ہو سکتا ہے اسمارٹ کلاسز کے تعلق سے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ پری پرائمری اسکولس کا آغاز ہم جہاں جہاں بھی کر سکتے ہیں, ہم SDMC کے تعاون سے یا جو معاشرے کے تعاون سے یا الگ الگ ذرائع سے کر سکتے ہیں. اگر کہیں ہمیں جو ہے آپ کے تعاون کی بھی ضرورت رہی تو یہ پری پرائمری اسکولس کا آغاز کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اشد ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس زمن میں ہم آپ سے جو ہے یہ چاہتے ہیں. ہلو, پری پرائمری اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آنگن واڑی ورکرز روک رہے ہیں, آپ شاید اس کا اسٹرائک دیکھے ہوں گے. بہت ہی جو ہے عمدہ پیمانے پہ اس کی روک تھام کی گئی. یہ کیا مقصد ہے؟ ہم کس طرح سے گورنمنٹ اسکول میں پری پرائمری کا ایڈمیشن لیں؟ کیسے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ آنگن واڑی ٹیچرز کی جو اسٹرائک ہو رہی ہے وہ مسئلہ الگ چیز پر نہیں سر, وہ سیلریز کا مسئلہ ہے. سیلریز کا نہیں ہے سر, یہ بھی ہے, یہ بھی روک رہے ہیں وہ. ہم کو کیوں اپائنٹ کیا گیا جبکہ پری پرائمری وہاں ہے تو ہمارے پاس بچے نہیں آئیں گے؟ تو اس کی روک تھام کیسے کریں گے جبکہ بی لنگویل لینگویج کی طرف سے جو ہے ہمارے پاس اردو اسکولس میں ایڈمیشن کم ہو رہے سر, کنڑا اسکول پر بھی اثر پڑ رہا. تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے یا شروع ہو جائیں گے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ جہاں تک پرائمری کے تعلق سے ابھی پچھلے 1.5 مہینہ پہلے لنگوسٹک مائنورٹی ڈائریکٹر جو ہمارے CPA آفس کمشنر آفس میں جو ہے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے رابطہ کیا تھا. ابھی جو ہمارا حالیہ بجٹ پیش ہونے والا ہے تو وہاں پہ جو ہے لنگوسٹک مائنورٹی اسکولس کے لیے 150 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے, گرانٹ سینکشن ہونے والے ہیں. تو انہوں نے مشورہ مجھ سے کیا تھا کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم, بتاؤ کہ اردو اور ادر لنگوسٹک مائنورٹی اسکول کے لیے کیا پروجیکٹ میں جا کے پیش کر سکتا ہوں. تو یہی میں نے ان سے کہا تھا کہ پری پرائمری اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ پرستاو رکھیے سدرامیہ سر کے پاس. تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ کے تو اسکولس سارے بائی لنگول ہو رہے ہیں, انگلش میڈیم ہو رہے ہیں, وہاں پہ اردو آنگن واڑی اگر آپ اسٹارٹ کریں گی تو اردو آنگن واڑی سے بچے انگلش میڈیم میں کیسے داخلہ لیں گے؟ یہ ایک مسئلہ جنین تھا. اگر ہم پری پرائمری اسٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو اب آئندہ دنوں میں ہر اسکول جو ہے انگلش میڈیم ہو رہی ہے وہاں پہ, تو اگر ہم اردو آنگن واڑی اسٹارٹ کریں گے یا نرسری اسٹارٹ کریں گے تو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں وہ انگلش میڈیم میں کیسے ایڈمیشن لیں گے؟ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں اردو HPS ہیں, جو آلریڈی اب HPS ہیں, وہاں پہ آپ فیڈنگ اسکول کے طور پر اردو نرسری اسٹارٹ کرنے کا پرستاو, بیکاز بگ بجٹ ہے.
تو وہ رکھیے. اس کے بعد جو ہے بائلنگول میں نرسری کی ضرورت نہیں ہے. بائلنگول میں ویسے بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, انگلش میڈیم بولتے ہی آ کے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. تو اردو جہاں جہاں ایچ پی ایس ہے وہاں پہ آپ نرسری کا پرستاؤ رکھیے. تو میں محفل نساء سے یہ ملتمس ہوں کہ میڈم اس معاملے میں جو ہے ہم حکومت پر صرف میمورانڈم وغیرہ دے کر زور دے سکتے ہیں, لیکن اس سے اگر ہمارا معاشرہ جڑ جائے, اور معاشرے وہ یہی بول رہے تھے کہ یہ آپ مطالبہ کر رہے ہو ٹیچرز بیکاز اپنی نوکریاں بچانے کے لیے, معاشرے میں کہاں ہے اردو کی طلب. تو اگر میں چاہتی ہوں کہ معاشرہ اگر یہ طلبگار ہو ان سے کہ ہمیں اردو نرسریز چاہیے, تو انشاءاللہ تعالی اس بجٹ میں ہی وہ نرسریز کا پرستاو سویکار کر سکتے ہیں اگر معاشرہ ان سے جڑ جائے. تو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اساتذہ بول رہے ہیں بیکاز ہماری نوکریاں بچانے کے لیے, تاکہ اردو بچی رہے تو ہم بھی بچے رہیں گے. اگر معاشرہ ہی ان سے یہ طلبگار رہے کہ ہاں ہمیں اردو نرسریز چاہیے تو یہ 100% سکسیسفل ہو سکتا ہے. تو محفل نساء سے میں ملتمس ہوں کہ میڈم آپ بھی سرکار کو, ڈپارٹمنٹ کو آپ اپروچ کریں کہ ہمیں اردو نرسریز چاہیے. کہ انشاءاللہ ایک ایسا وفد تیار کیا جائے جو وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم سے ملاقات کرے, جس میں جو ہے تمام این جی اوز کے سربراہ, تنظیم کے سربراہ, اسکالرس جو ماہرین تعلیم ہے, اگر ہم تمام جا کر اگر اپروچ کریں گے تو انشاءاللہ اس بات کو زیادہ طور پر جو میں سمجھتا ہوں بہتر طریقے سے جو ہے کنونس کر پائیں گے. نہیں چاہتے کہ ہم کو اردو پڑھائی جائے تو کیا کرے, سرکار بھی کیا کرے گی. تو اس پر موٹیویٹ کرنا, وہاں تک لانا, جہاں تک ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو تیار کریں کہ ہمارے پاس کتنے بچے ہیں. ہم لے آ کے نمبر دیں گے کہ دیکھیں اتنے محلے میں اتنے بچے ہیں, ایک جگہ 100 ہے, ایک جگہ 50 ہے, ایک جگہ 25 ہے, 5 بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو کیا مطالبہ کریں گے. نہیں, یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا تک سوال ہے, جغرافیائی طور پر اگر دیکھا جائے تو شمالی کرناٹک کی حالت میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ آج بھی بہت بہتر ہے. ہمارے پاس ایک اسکول میں 400 500 1000 1200 تک بچے ہیں. نہیں, تو میں آ رہا ہوں اسی بات پر. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شمالی کرناٹک کے اساتذہ کے مسائل یا وہاں کے اسکول کے مسائل کچھ الگ ہیں. اگر آپ کوسٹل بیلٹ میں جائیں گی تو وہاں کے مسائل کچھ الگ ہیں. درمیانی کرناٹک کے جو مسائل ہیں اردو اساتذہ کے, اردو اسکولس کے, وہ کچھ الگ ہیں. ساؤتھ کرناٹکا میں جو ہے کچھ حد تک میں دیکھ رہا ہوں ان چند سالوں میں جو ہے تھوڑی تعداد یہاں پہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مگر جہاں پر زیادہ تعداد ہے فی الوقت, جہاں اب ہمارے پاس ایسے اسکولس ہیں, اگر داونگیرے سے اوپر آپ جانتے اس بات کو, اگر چلی جائیں گی گلبرگہ, بیدر, بیلگام, تو وہاں پہ ماشاءاللہ 500 600 1000 تک بھی بچے ہیں اسکول میں, 10-15 اساتذہ کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر اگر چند ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چند ایک اسکولس کا انتخاب کر کے جو ہے پری پرائمری اسکولس وہاں پہ آغاز کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر ان کے جو مسائل ہیں جہاں پہ تعداد بتدریج گرتی جا رہی ہے, اس کے مسائل الگ ہے. اب اس میں اگر اور گہرائی سے اگر آپ مطالعہ کریں گی تو سٹی کے عوام کے مسائل الگ ہیں, ان کی سوچ الگ ہے, شہری لوگوں کی سوچ الگ ہے, دیہی لوگوں کی سوچ الگ ہے. شہری لوگ جو ہے یہاں پر یہ بریڈ اینڈ بٹر کا زیادہ سوچتے ہیں. پریکٹیکل باتیں کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. یہاں پہ جو بریڈ اینڈ بٹر کی باتیں زیادہ ہوتی ہے, جبکہ کریوں میں آج ہمارے یہاں آج بھی یہی ماحول ہے کہ دادا بھی اردو میں پڑھا تھا, بیٹا بھی اردو میں پڑھا ہے, پوتا بھی اردو ہی میں پڑھے گا. تو یہ الگ الگ رجحانات ہیں, الگ الگ خیالات ہیں. تو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ سماج کی تمام اکائیوں کو اکٹھے ہو کر منظر عام پر آنا پڑے گا اور عوام الناس میں یہ شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ اردو ذریعے تعلیم جو ہے آپ کے لیے بریڈ اور بٹر کا بھی کام کر سکتی ہے, آپ کی تہذیب کو بھی فروغ دے سکتی ہے, آپ کو جو ہے اپنی پہچان بھی دے سکتی ہے اور آپ کی جو ہے شان بھی بڑھا سکتی ہے. یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ سائڈ میں کا حوالہ ہم دے سکتے ہیں. سرکار سے ہم صرف نارتھ سائڈ کا حوالہ دے کر بات نہیں کر سکتے. سرکار سارے کرناٹک کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. تو اس لیے یہ پرستاو رکھ سکتے ہیں کہ ایچ پی ایس جہاں پہ ہیں, اردو میڈیم جو ابھی بھی بچے ہیں, ایچ پی ایس جہاں پہ ہیں, طے کر لیتے ہیں 300 سے زیادہ بچے جہاں پر ہیں. ہم تعداد, میں نے یہی ساری جو باتیں آپ نے کہی تھی وہی ہم نے کہی. میں نے جب سر سے, ڈائریکٹر سر سے بات کہی تو طے ہم نہیں کر سکتے, طے کر کے انہیں کرو بول کو لاگو نہیں کر سکتے. محفل نساء اور ایسی جو دوسری انجمنیں جو معاشرہ کہلاتی ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایچ پی ایس کے لیے اردو ایچ پی ایس نہ تعداد نہ کوئی نارتھ یا ساؤتھ, کوئی جو ہے تفریق نہ سٹی نہ دیہی تفریق نہ کریں.
HPS जहाँ पे है उर्दू के, हमें वहाँ फीडिंग नर्सरी स्कूल्स चाहिए, बाइलिंगुअल एक्सेप्शनल है। मामला जी सर, मामला 3 महीने का नहीं है, अभी बजट तैयार हो रहा है, बजट के हवाले से डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, इसलिए इस जो भी अपील जैसा कि आपने कहा, ये बहुत मुनासिब ख्याल है कि हम एक वफ्द की सूरत में वज़रा से मिलें, वज़ीर तालीम से, वज़ीर आला से और दूसरे और महकमे के जो अथॉरिटीज़ हैं, सेक्रेटरीज वगैरह से मिलें और उनके सामने ये रखें। और ये बात भी मुनासिब है, जैसा फायजा ने कहा कि सिर्फ असातिज़ा की तरफ से आवाज़ उठाई जाए तो वो समझेंगे कि ये अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और खुद गवर्नमेंट भी जो इस बात पर जोर दे रही है सर। जी, तो ठीक है, एक वक्त ले जाएंगे और इस सिलसिले में हम फौरी कोई तजवीज़ रखेंगे। से माशरे को जोड़ने वाली बात है। बुनियादी बात यह है कि पहले माशरे में असातिज़ा एतमाद अपना पैदा करे। इस बात का सबसे पहले जायजा लें कि उर्दू असातिज़ा के बच्चे किन मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर उर्दू असातिज़ा के बच्चे गैर उर्दू स्कूलों में पढ़ रहे हों तो माशरे में उर्दू जबान से कैसा माशरा जुड़ेगा। वो ये सोचेंगे खुद उर्दू असातिज़ा जिनकी रोटी रोजी का इन्हिसार उर्दू जबान पर है, उनके बच्चे अंग्रेजी और मुकामी जबान की स्कूलों में पढ़ रहे हों तो वो क्या बेवकूफ है मोहल्ले में, जिसके साथ में मोहल्ले में जो पड़ोसी है, टीचर का जो पड़ोसी है, वो क्या बेवकूफ है कि वो उर्दू मीडियम में बच्चे को अपना दाखिल करे। पहले इस बात का जायजा लें कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके बच्चे किन मीडियम्स में पढ़ रहे हैं, उसका आप एक जायजा हमको पेश करें पहले बुनियादी तौर पर। प्री प्राइमरी स्कूल की तरफ गवर्नमेंट भी मुतवज्जा है। इस साल कई स्कूल जो है अप्रूवल भी दिए हैं, उसमें हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में 3 अच्छी स्ट्रेंथ वाले स्कूल्स को अप्रूवल मिला है, LKG UKG का। तो अभी अगर वफद भी जाकर यहाँ भी धारवाड़ में, तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है थोड़े कन्नड़ा स्कूल्स और उर्दू स्कूल्स को अप्रूवल मिला है। चूंकि अभी गवर्नमेंट में मुतवज्जा, अगर ये वफद जाएगा अलग अलग तंजीमों से तो इंशाल्लाह काम बनने के चांसेस ज्यादा है। तुमने कहा कि नर्मदा से उस तरफ की उर्दू अलग है, मसाइल अलग हैं, इस तरफ के मसाइल अलग हैं। वहां पे दावनगेरे से उधर क्या है, प्राइमरी स्कूल के बाद में हाई स्कूल भी उर्दू के हैं और गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं। प्रॉब्लम उर्दू के मोहब्बत में आ जाते हैं, वरना हम क्या चेपिद्दी से शेरवा उर्दू के मोहब्बत में आ जाते हैं। मैं भी एक स्कूल चलाता हूं, प्राइवेट स्कूल, उर्दू के प्राइवेट स्कूल सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका में है, जहां पे गवर्नमेंट ने एडेड स्कूल दी भी है। मेरी भी अपनी एक स्कूल है जहां पे तकरीबन 200 बच्चे पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं और कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट स्कूल पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अभी एक हाल ही में एक सेमिनार में मैंने पार्टिसिपेट किया था, मुझे पता चला, एंड इट इज शॉकिंग, मैं बताता हूं आपको। इस सिलसिले में कल एक मीटिंग हुई थी और एक फॉलो अप मीटिंग, उसमें भी मैं शामिल था। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं यहां पे कि बेंगलुरु नॉर्थ में लोअर प्राइमरी स्कूल 43 और हायर प्राइमरी स्कूल 24, टोटल 67 स्कूल्स हैं। और बेंगलुरु साउथ में, सिर्फ बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, 103 प्राइमरी उर्दू स्कूल्स हैं। और शॉकिंग इज आउट ऑफ अंडर चिकबल्लापुर का मिला के 203 स्कूल्स हैं टोटल उर्दू स्कूल्स, सिर्फ बिग फिगर स्कूल्स हैं। मगर आपको ताज्जुब होगा कि टोटल बच्चों की तादाद 2300 है, 2270 के लगभग, मतलब 2300 समझ के जाओ। तो उसमें एक स्कूल में 1400 है, 1300 है वीके उबैदुल्लाह में, एक स्कूल में 1000, मतलब बाकी के जो भी तकरीबन 105 स्कूल में आप डिवाइड कीजिए कितने बच्चे होंगे। जैसे मैं जानता हूं 1-2 स्कूलों को मैं जानता हूं जहां पे 3 बच्चे हैं और 2 असातिज़ा हैं, और वो भी ढंग से नहीं चलते हैं। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट, मेरा अपना तजुर्बा है। नागौरपालिया की एक स्कूल है, मस्जिद वालों ने एक कमरा दिया हुआ है उनको, टोटल 17 बच्चे हैं, एक टीचर है वहां पे बाकायदा, एक क्लीनर है
اور ایک وہ کھانا سپلائی کرنے کے لیے ایک اسسٹنٹ ہے. مطلب تقریباً گورنمنٹ اپنی طرف سے وہاں پہ 3.5 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کر رہی ہے 17 بچوں کے لیے. شاید مائیگرنٹس کے بچے ہیں, ویسٹ بنگال کے, بہار کے بچے ہیں, بیچارے قسم پر یونیفارم آتا ہے, کھانا آتا ہے, اس لیے بچے بھی آتے ہیں شاید. تو کل ہی میرے کولیگس ہیں, جناب عزیز اللہ بیگ صاحب ہیں, اقبال صاحب ہیں, سب. میں کل ایک خاص انسان سے مل رہا تھا. we are planning it out that بنگلور میں 103 اسکول جو ہیں اس میں ہر اسکول میں ایوریج 10 سے زیادہ بچے نہیں. we are required to adopt it. اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اقبال بلند ہو ان کا, کافی محنت کر رہے ہیں اردو کے لیے, اردو اسکولز کے لیے 3 اسکول انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, ہم گفتار کے غازی زیادہ بن گئے ہیں, کردار کے غازی نہیں. کرم یوگی نہیں, ہم کرم یوگی نہیں. ہر کوئی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہو رہا ہے. ہم کر رہے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ہمیں کرتے جو وہ کرتے تو ہم کرتے, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے الٹیمیٹلی میرے خیال سے. ان کو واٹ وی ریکوائر ان کرناٹک, آپ نارتھ کرناٹک کی بات چھوڑ دو, وہ اپنا علاج خود کر لیں گے, وہاں پہ اردو پنپے گی, رہے گی. بنگلور کی بات کرو, بنگلور should serve as an example. بنگلور میں محفل نساء ہے, پروفیسرز ہیں, لیکچررز ہیں, مگر کام بنگلور میں. بنگلور is an example. If you can set it will set an example for the entire Karnataka. Unfortunately بنگلور میں ماشاءاللہ باتیں بہت ہو رہی ہیں, کام کچھ بھی نہیں. جو چند اہل نفس تیرے چار, بہت ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے, وہ چند اہل نفس تیرے چاہنے والے. بہت میکسیمم 10 اسکول اڈاپٹڈ ہیں بس بنگلور میں, آؤٹ آف 203 اسکول 10. اور کتنا خرچہ ہوتا ہے, میں بیٹھ کے کل ابھی بنا رہا ہوں, میں آپ سے شیئر کروں گا. ہمارے وہ الٹیمیٹلی ہندوستانی اردو منچ کا خاص کام یہی ہوگا کہ ہم بنگلور کے ہر اسکول کو اڈاپٹ کریں گے, اور خرچہ زیادہ نہیں آئے گا میکسیمم, کیونکہ گورنمنٹ کا بنایا ہے یار. طبق میں پیش کر رہے وہ تمہاری اسکول بلڈنگ ہے, تمہیں کھانا آ رہا ہے, یونیفارم آ رہا ہے, تمہیں بکس آ رہے ہیں, اور کیا چاہیے ہم کو؟ صرف ایک انسان چاہیے جو اس کو سپرائز کر سکے اور اپنی جاب سے 15,000 روپے دے سکے, تاکہ وہاں کنڑا پڑھائی جا سکے اور انگریزی. اگر ہم اچھی اسکول بنا کے پیش کریں گے, یہ ایک اچھی اسکول پیش کریں گے, ایک اچھی اسکول, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بچے, میں اردو دا ہوں, اردو کے لیے فخر محسوس کرتا ہوں. صاحب ہیں, IAS آفیسر ہیں, ہمارے بچے نہیں پڑھے اردو میں. بدقسمتی ہے, خوش قسمتی ہے, جو بھی پڑھے اردو میں پڑھتے تو شاید یہی ہو رہتے, پتہ نہیں, کیونکہ ہم نے دیا نہیں ہے. وہ ایک اچھا ماڈل پیش کرو, کیوں نہیں آئیں گے؟ ابھی اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میری کیا کہتے ہیں اس کو, تعظیم ان کے لیے ہے. میں ان کا بڑا وہ ہوں کہ وہاں پہ تمل والے اور کنڑا کے بچے آ کے پڑھ رہے ہیں اردو اسکولز میں, بیکاز ہی ہیز سیٹ این ایگزامپل. ہم صرف یوں ہی کرتے رہیں گے. اردو الٹیمیٹلی اردو مرے گی نہیں, بے فکر رہو. ایک بار میں بات کر رہا تھا ہمارے عزیز اللہ بیگ صاحب سے, انہوں نے کہا مر بھی گئی تو پاکستان میں زندہ رہے گی. میرا اس کو ایڈیشن یہ ہے, میں بہت لاؤڈ ہوں شاید, میں ذرا اردو کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا غصہ بھی آتا ہے اور جوش بھی آتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پلٹ دے زمانے کو, ایسا کچھ ہو جاتا ہے مجھے, کیونکہ ہم لوگ مردہ ہیں, کرتے کچھ نہیں, باتیں بہت کرتے ہیں. اقبال بڑا من موجی ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے. گفتار کا تو غازی بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے. ایک اسکول اڈاپٹ کریں گے بنگلور والے, خاص کر کے محفل نساء والے. کہاں اردو اسکول ہے, وہاں کی حالت کیا ہے, کتنے کمرے ہیں, کتنے اساتذہ ہیں, کتنے چلڈرن ہیں, کیا ضرورت ہے؟ ایک اسکول
15,000 रुपए में एक अच्छी स्कूल चल सकती है अगर हम अडॉप्ट करें। जरूरत सुपरविजन की है, पैसे की भी कोई बात नहीं। पैसे 100 स्कूल के लिए 10,000 के कितना होता है यार, ये साल में कितना होता है? 10,000 के हिसाब से 100 स्कूल को 10 लाख रुपए होता है। इज इट द मनी? 10 लाख रुपए कोई पैसा है क्या? कितना होता है 100 स्कूल को 10,000 के हिसाब से? 10,000 लाख 10 लाख, 2 सिफर लगा दो, 10 लाख होता है। 10 लाख हमारे लिए पैसा है क्या? वो ब्लडी पीरियड्स है यार, मगर करने की जरूरत है। ब्लडी वी हैव टू डू इट। बातें बड़ी हो चुकी हैं। बेंगलुरु शुड बी प्रेजेंटेड एज ए मॉडल ऑफ उर्दू स्कूल। एक स्कूल को अच्छा मॉडल बना के पेश करो, फिर देखो रेवोल्यूशन आ जाएगा। चूंकि उर्दू हम सिर्फ उनकी तरफ जाएंगे, उसी चीज की तरफ जाएंगे जो हमें अटैक करती है। मिकनातीस की तरफ जाता है लोहा, लोहा मिकनातीस की तरफ जाता है लोहा। तो जरूरत क्या है? जरूरत थोड़ी सी कुर्बानी की है, थोड़ी सी कुर्बानी। हम सब मिलकर थोड़ी सी कुर्बानी करेंगे, खास करके बेंगलुरु वाले। बाहर वालों को ब्लेम, तुम नॉर्थ कर्नाटक की फिक्र करना छोड़ दो, वो दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उनके आज बेंगलुरु में तुमको स्टैटिस्टिक देता हूं, 33% ऑफ मुस्लिम कॉन्स्टेबलरी इज फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका बिकॉज दे नो कन्नड़ा। नॉट इवन 1% इज फ्रॉम बेंगलुरु कॉन्स्टेबलरी में बिकॉज दे डू नॉट नो कन्नड़ा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। 34 बच्चे हैं बीके उबैदुल्ला में लास्ट ईयर एसएसएलसी को, 34 लड़के में 28 लड़के कन्नड़ा में फेल होते हैं। हाउ कैन आवर उर्दू स्कूल्स फ्लरिश? दे विल नेवर फ्लरिश। आप कुछ भी कर लो, वो फ्लोरिश नहीं होंगे बिकॉज यार नहीं दे रहे हमको। रोजी रोटी जरूरी है, रोजी रोटी। कल्चर वल्चर क्या है? कल्चर से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैं शायर हूं, अच्छी नज्म लिख लेता हूं, कौन सुनेगा यार? जब तक के माहौल। और फिर हमारे बहुत प्रॉब्लम है हमारे साउथ में। उर्दू वो बोलते हैं बिना उर्दू के हम तरक्की कर रहे हैं। केरला वो बोलते हैं बिना उर्दू के हमने बहुत कुछ पा लिया है। उर्दू की जरूरत सिर्फ कर्नाटक वालों को ही है, और हमारी बोलने की जुबान ना हो रहा है, लिखने की जुबान ना हो रहा है, पढ़ने की जुबान ना हो। उर्दू 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 कुछ मरेगी नहीं उर्दू, डोंट वरी। ये मदारिस जो है, अरबिक मदारिस जो है, उर्दू को जिंदा रखेंगे। पाकिस्तान के अलावा एक और जगह है हमारी जहां उर्दू मदारिस रहेंगे, मगर करने की जरूरत है क्योंकि ये हमारी माँ है। ये मादरी जबान बोलते हैं शायद हम, मादरी जबान ये माँ है वो उसके। ये प्रॉब्लम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम सब कौमों को है। तुम समझते हो कन्नड़ा वालों को नहीं, वो भी इसी तरह हो रहे हैं कि इंग्लिश, एक जमाना आएगा इंग्लिश सारी जुबानों को खा जाएगी बकासुर की तरह। जिस तरह बकासुर आग खाता था उस तरह इंग्लिश जुबान सारी जुबानों को खा जाएगी अल्टीमेटली। पुरजोश मुहिम पे उर्दू की बातें सुन रहे थे। सीनियर होने के नाते उन्होंने अपनी तमाम तर दर्दमंदी को अपनी बातों में उड़ेल दिया था। उससे किसी को नाराज होने या बददिल होने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आपने जो है चीजें जो हक़ाइक़ पर मबनी थी उन्हें बताया, और उस पर हमें अपनी कारगुजारियों से आपकी बातों को उन पर जो है अमल पैरा होकर उन बातों को झूठ भी साबित कर सकते हैं और फिर अपने लिए राहें हमवार भी कर सकते हैं। ये बात तो यकीनी है कि जंगी पैमाने पर उर्दू वालों को काम करना चाहिए और उस पर हम तमाम का इत्तेफाक है। बहुत सारी बातें जिनकी वजाहत यहाँ हम करना भी चाहें तो आज हमारे पास वक्त नहीं है। इसके लिए बहुत सारी मीटिंगों और इजलासों की और फिर तबादले ख्यालात की ज़रूरत है, वो हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैं इस वक्त आप तमाम का वक्त ज़ाया किए बगैर आवाज़ देती हूँ हमारी सद महफिल निसा, ताकि वो जिन लोगों का रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुका है वो अभी रवानगी के लिए बेताब भी हैं और काफ़ी ताख़ीर से ये इजलास आज शुरू हुआ है, उसकी भी कुछ वजूहात रही होंगी। मैं सद महफिल निसा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा से इल्तिमास करूंगी
कि वो आए और माइनॉरिटी के जो चिकोड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले सलीम साहब, जिन्होंने अभी अपनी यहाँ पर कारगुजारी का इजहार किया, उनकी हौसला अफजाई और उनकी शालपोशी करें। काले खान सर, और दूसरे अजला से जो लोग हैं, शायद बहुत सारे लोग सर वहाँ पे छोटा सा जलसा करके कर लीजिए जी। नहीं है, बीदर वाले नहीं है, कोप्पल रायचूर वाले नहीं है, दावणगेरे वाले नहीं है, दावणगेरे वाले नहीं है। इधर और माशाल्लाह जो है इनका बेटा उर्दू मीडियम से पढ़कर इस वक्त IIT हैदराबाद में पढ़ रहा है। दोनों जो है मियाँ बीवी दोनों जो है असातिज़ा कराम है उर्दू के। कौन शख्सियत मुजावर सर हमारे, हम नौजवानों से ज्यादा फाल रहते हैं, इसीलिए हम जो इनको नौजवान तस्वुर करते हैं। तहनीत है, उनको ये बात बताना चाहूंगा कि ये शाल नहीं जिम्मेदारी है, फिर एक जो है आपके, ये आप पे भारी है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी दो मैडम। और हमारे अशफाक अहमद मड़की साहब जो हमारे एसोसिएशन के रियासती मेंटर भी हैं, हमारी गाइड भी हैं। अशफाक भाई जल्दी आ जाए। हमारे काले खान सर हैं धारवाड़ की टीम से, माशाल्लाह इनकी टीम ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया मोहतरमा। ये जो इन्होंने 10 ऐसे स्कूल्स की निशानदेही किया स्कूल धारवाड़ की टीम ने, और ये हमारे रिसोर्स कन्वीनर हैं। जो भी रिसोर्स पहुंचता है वो पूरी टीम को जो है संभालते हैं हमारे जकी भाई, जकी काजी और मोहतरम। हावेरी से कोई है क्या? हावेरी से? हावेरी आज यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे लोग दोपहर में थोड़े निकल गए। और अशफाक अहमद मड़की हमारे मेंटर है, हमेशा एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा। बड़े भाई जनाब जल्दी आ जाए, एक आखिरी है। इन्होंने जो है बजाते खुद उर्दू नली कली आने से पहले एक किताब लिखी थी प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, उसे प्रिंट करवाया। लगभग 40 से 50 हजार रुपए अपने हाथ से, 5 लाख माफ कीजिएगा, 5 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने बुक्स प्रिंट कराई और जो है तमाम स्कूलों में तकसीम कराई है हमारे बड़े भाई साहब। और वाकई में बड़े भाई का रोल इन्होंने अंजाम दिया। हमें समझ ट्विंकल स्कूल के प्रोपराइटर हैं आप। आपकी स्कूल ने हमेशा महफिल निसा की तमाम तर हमारे सफर में साथ रहे हैं और बहुत ज्यादा ताउन दिया है। बहुत संजीदा शुमाइल की शालपोशी करेंगी। मैडम इधर आ जाइए आप। बेंगलोर मरकज के तमाम जिम्मेदारों को मदऊ करती हूँ डयास पर।
हमारी गुलबर्गे शाह महफिल निसा की मोतमिद और हमारी हर सरगर्म कारकुनान में से हम डॉक्टर कौसर परवीन साहबा से उनके मरकज की कारगुजारी के से मुतालिक भी 2 बातें सुनना चाहेंगे। बहुत कुछ ऐसे और बहुत सारे अखाड़ा CRPs की उर्दू स्कूल वालों को, उर्दू स्कूलों को बेहद जरूरत है। सर हाजिर महफिल, मैं समझती रही थी कि मैं महफिल निसा से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मेरा शुमार मेज़बानों में है, लेकिन मैडम ने मुझे भी मेहमानों में शुमार कर दिया। इस इखलास के लिए जो कुछ इखलास का तोहफा पेश किया गया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह बेंगलुरु की अपनी एक टीम है, फिर इसकी एक शख्स जब वहाँ आई, वहाँ मैं भी तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ भी एक टीम है और सच पूछे तो उस टीम में असातिज़ा ही शामिल हैं। 2011-12 से हम बराबर इस टीम के क़याम के बाद से हम वहाँ भी यहाँ जो साल भर का भेजा जाता है उस पर अमल करते हैं। उससे हटकर भी जो हमारे वहाँ प्रोग्राम होते हैं उसमें सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अदबी इजलास सभी कुछ रखा जाता है। सबसे अहम चीज़ें जो हमने अब तक पेश की, हमारे तमाम सेमिनार मौज़ूआती होते हैं। जैसे हमने पहले किया था कि आज हमारा जो कुछ मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इस मीडिया में हमारी वाकई क्या ज़रूरत होनी है और आप कुछ मसाइल से जुड़े हुए हैं। फिर हमने एक मौजू और भी दिया था, मीडिया के मसाइल आज जो हैं पहले क्या ये नहीं थे। हम जानते हैं आज जो मीडिया के मसाइल हैं ये आज़ादी के वक्त भी थे, उस वक्त भी मीडिया ने काम किया था। यकीनन जब प्रिंट मीडिया था मगर बहुत मौसर मीडिया था, हमने इस पर भी रखा था और शायद उस मौजू को बहुत दिलचस्प अंदाज में जिन लोगों ने पेश किया था वो एक तासुर रखने वाला था। उससे ज़्यादा हम चाहते हैं उर्दू के लोग सबसे जुड़े हुए रहें। हम लिसानी मुशायरा नहीं रखते, हम अदबी इजलास रखते हैं जिसमें एक ज़बान का कड़ा का एक अफसाना पेश किया गया तो उसका उर्दू में तर्जुमा भी पेश किया जाता है। अगर मराठी का अफसाना हो तो हम उसका उर्दू में तर्जुमा भी पेश करते हैं। ये तो हमारा अदबी काम है। हम अपने वहाँ के फनकारों को तहनीत भी पेश करते हैं। इससे हटकर जो काम होता है यहाँ से जो दिया जाता है कलाम विजन का, हम उसको भी वहाँ पेश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये भी है कि वहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब कॉलेज के लेक्चर्स हैं या फिर असातिज़ा हैं। लेक्चर्स को तातीलात हों तो असातिज़ा को नहीं मिलते और असातिज़ा को जब मिल जाते हैं हाई स्कूल के तो लेक्चर्स के पास वक्त नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा मेरा और एक मसला ये है, हमारी सदर और नायब सदर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से बाहर ही रहते हैं, अमेरिका में। लेकिन सबसे बड़ी खुशनसीबी महफिल निसा शाह गुलबर्गा की ये है कि दोनों इतने फाल हैं कि हमेशा वो हिंदुस्तान में हो या ना हो, गुलबर्गा में हो या ना हो, जब वहाँ रात होती है हमारे पास दिन होता है, वहाँ तहज्जुद पढ़कर हर हफ्ता बराबर फ़ोन करते हैं कि इस हफ्ते हमें क्या करना है। ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है और शायद इसलिए भी कि वो मेरे असातिज़ा हैं। तो हमारे ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन अदबी इजलास ज़्यादा होते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा चाहे वो अब तो ये हो गया है कोविड के बाद से हम तहनीती इजलास भी ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद हम भिजवा देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम ताज़ियती इजलास भी ऑनलाइन ही करते हैं। हमारे अब अदबी इजलास भी हमारे ऑनलाइन ही हुआ करते हैं, जिसमें अक्सर हम सरपरस्ती के लिए डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा को ही हम वहाँ अपने ऑनलाइन इजलास में पेश करते हैं। लेकिन जो चीज़ हम महफिल निसा वहाँ करना चाहती है वो है यहाँ की तरह वहाँ भी फुलवारी कायम हो, यहाँ की तरह वहाँ के असातिज़, जैसे अभी मुल्ला साहब ने बहुत अच्छी बात की, बोलते बहुत ज़्यादा हैं
वहाँ मीटिंगों में बुलाए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और जब पूछिए उनसे कि वो मीटिंग में 10 मिनट के बाद कहते हैं नहीं मैडम मुझे जाना है कि मेरे बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग है, ना जाऊँ तो वहाँ नोट में कुछ लिखा जाता है। तो आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? या तो उनका बच्चा कैनबेरिज में पढ़ता है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, या फिर चंद्रकांत पाटिल स्कूल में पढ़ता है। एक चीज केरला में ही हुई थी, उस दौर उस मिनिस्टर का नाम शायद मुझे अब इस वक्त याद नहीं, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। उन्होंने जबान की तखफीज नहीं की थी। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारे असातिज़ा, हम खुद, हमारे वालिदैन खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े नहीं? पढ़े। आज उनकी कड़ा अच्छी है, आज उनकी उर्दू अच्छी है। मैं बताऊं 1949 में मेरे वालिद सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में थे कि हैदराबाद में एक्शन हो गया और उन्हें गुलबर्गा लौट आना पड़ा अपनी हिफाजत के लिए। सिर्फ 5th स्टैंडर्ड तक उन्होंने पढ़ा था। उनकी कड़ा अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, उनकी मैथ्स अच्छी थी, जबान का बहुत अच्छा उनका ज़ौक़ था। जब भी गुलबर्गा में कोई मुशायरा होता तो हम इतने छोटे से थे, बराबर हमें ले जाया करते थे। क्यों थी? वो सारे सरकारी स्कूल थे, वो मियार था। तो क्या वो जब असातिज़ा नहीं सो पैगम्बर थे? वो असातिज़ा ही थे। हम सबको दोष देने के बजाय पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। माशरा सुधरा, माशरा सुधर जाए, माशरा सुधर जाए, ये माशरा नहीं सुधरता। माशरा फर्द से बनता है, इसलिए पहले फर्द को सुधरना पड़ता है। मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उर्दू में क्या करती हूँ। मैं सोचती उर्दू में हूँ, बोलती हूँ अंग्रेजी में हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा मसला है और हम चाहते हैं गुलबर्गा में ये ना हो। आज से 6-7 साल पहले गुलबर्गा में एक मुहिम चली थी, कुछ सोशल वर्कर ने मिलकर उर्दू सरकारी मदारिस में दाखिले के लिए बहुत कोशिश की थी और बड़े कामयाब भी रहे थे। वो स्कूल जहाँ सिर्फ 10 या 5 एडमिशन हुआ करते थे, वो एडमिशन वहाँ पर 60 तक पहुँच गए थे। 60 तक भी पहुँचना बहुत बड़ी बात है। ये कोशिश वहाँ कामयाब रही। फिर उन कोशिश करने वालों में से कुछ गुजर गए, कुछ तन्हा हो गए, और कुछ के लिए जो अंग्रेजी मीडियम के महल्ले के मदारिस हैं उन पर बोझ या फिर उन पर दबाव डाला गया, तो वो भी तंजीम खामोश रही। अब शाख महफिल निसा इस हफ्ता या इस माह उनसे बात करने के लिए कई बार कोशिश तो करिए, दुआ कीजिए कि कोशिश हो वो। अब फिर जब जून में एडमिशन स्टार्ट हो तो ये काम ठीक से हम वहाँ शुरू कर सकें। ये नहीं है कि उर्दू जिंदा जरूर रहेगी, क्या आज फारसी जिंदा नहीं है? आप या मैं अभी नीच तस तक तो जानते हैं, ऐसे ही लोग जानेंगे। पाकिस्तान के राइटर से मिलिए, वहाँ के राइटर से बोलिए, वो भी यही बोलेंगे कि वहाँ भी उर्दू अब खाली नजर आती है। जवाहरलाल नेहरू जब पाकिस्तान गए थे, उन्होंने देखा था कि पूरे लोग सूट और बूट में हैं, शेरवानी में हैं, सब अंग्रेजी में बोल रहे हैं, और इन्होंने उर्दू में तकरीर करके आई थी। उन्होंने पूछा था आपने अपनी ज़बान, अपने मजहब के लिए आपने अपना मुल्क बना लिया था, तो फिर ज़बान आपकी कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा था। हम ये नहीं कहते कि ज़बान पाकिस्तान की है, हम ये कहते हैं ज़बान हमारे अपनी ज़मीन में पैदा होने वाली ज़बान है। ये ज़बान तहज़ीबों के मिलाप के लिए पैदा हुई थी। ये ज़बान सिर्फ सीखने के लिए नहीं पैदा हुई थी, एक दूसरे से राबिते के लिए पैदा हुई थी। और जब तक इंसान एक दूसरे से राबिता रखना जानता है, उर्दू ज़बान जिंदा रहेगी और ज़रूर रहेगी। अब तो जिंदा रहने के आसार ज़्यादा हैं, खुसूसन सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से। रेख्ता हमें मालूम ही नहीं था, काफी अरसे के बाद आया। अब हमारे पास 9 का बच्चा भी कहता है ये शेर देखना हो तो रेख्ता पर जाएगी। तो जबान तो जिंदा रहेगी, उर्दू तहजीब जिंदा रहेगी। उर्दू जिसकी रोजी रोटी है, वो ये समझ रहा है कि सिर्फ रोजी रोटी के लिए उर्दू के मदारिस जिंदा रहे। अगर आपकी नीयत ये है तो आपके रिटायरमेंट तक के लिए आपकी ये स्कूल बाकी रहेंगे। आप चाहते हैं कि आप रोजी रोटी के लिए आपके स्कूल बाकी रहें, तो आप खुद कफन पहले तैयार कर रहे हैं। खबर तो कोई भी खोल देगा। आप जमजम से भी धुला के लाएं, वो कफन आप तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अपनी नियतों को बदलिए, अपने रवैये को बदलिए। और हमारे महफिल निसा की कोशिश यही है, हम नहीं चाहते हम बड़े इजलास करें, उस इजलास में सिर्फ बुजुर्ग बैठे हुए रहें और नौजवान बच्चे ना रहें।
تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہائی اسکول کے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی کہانیاں نکل لائیں اور ہم ان کا ادبی اجلاس رکھیں. تو اس ہفتہ اس ماہ میں جب ہم نے یہ بات کی تو چند اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے کہا ہمارے بچے بہت اچھا لکھتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں جب میں نیشنل اسکول میں جاب کرتی تھی تو ہم نے ایک اخبار وہاں نیشنل کے مینجمنٹ میں نکالا تھا تو میں نے اس کا نام ہی ترجمان رکھا تھا, نیشنل گزٹ میں نے نہیں رکھا تھا. اور میں نے مینجمنٹ سے یہ بھی کہا تھا اگر ہم اسکول کے لیے نکال رہے ہیں تو صرف اپنے ہی اسکول کے بچوں کو ہم جگہ نہیں دیں گے, بلکہ ہم چاہیں گے کہ گلبرگہ کے جتنے بھی اردو میڈیم کے مدارس ہوں ان بچوں کی تحریریں ہم پر آئیں اور ہم وہ برابر اس کو شائع کریں. الحمدللہ کئی اسکول کے بچے ضرور لاتے تھے. کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا ہر بچہ اقوال زرین ہی لا رہا 4th اسٹینڈرڈ کا. تو تھوڑی دیر میں سوچتی تھی کہ یہ اقوال زرین صرف اپنی فوٹو اور نام کے لیے تو نہیں لا رہا ہے, لیکن پھر ہم نے یہ سوچا یہ بھی کرنا چاہیے تاکہ کل ان کو معلوم ہو کہ یہ چیز واقعی ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. جب بڑا ہوگا تو اسے بھی شرم آئے گی کہ ابھی سمجھ میں اقوال زرین کیا بھی جاؤں. تو یہ بنیادی کام کرنے کے لیے ہماری سوچ میں بنیاد ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضرور ہم کو کام یہ کرنا ہے, کانفرنسوں سے اردو زندہ نہیں رہتی. میں اگر افسانے لکھتے رہوں تو بھی میرے بچے پڑھنے والے اب نہیں ہیں, یہ میرے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے اردو کے بڑے بڑے رائٹرز گلبرگہ میں ہیں, ان کی الماریاں بھری ہوئی ہیں. کبھی کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ کوثر اب ان الماریوں کا کیا ہوگا. تو میں کہتی ہوں الحمدللہ میرے پاس ابھی یہ وقت باقی ہے کہ میرے بچے اردو پڑھتے تو ہیں اور یقیناً اس کا ذوق رکھتے ہیں. تو پتہ نہیں آنے والی نسل کیا ہوگی, لیکن بچوں سے اتنی توقع ہے کہ وہ ضرور اس کو باقی رکھیں گے. تو ایک گھر کا ایک فرد یہ طے کر لے تو یقیناً ضرور ہوگا. ہم دیکھتے ہیں لوتھر صاحب کی لائبریری کافی مشہور تھی, لیکن وہ لائبریری اب کیا ہو گئی مجھے نہیں معلوم. کافی بڑی تھی سر حیدرآباد میں ان کی لائبریری, اور 2 کتا ہی باہر بیٹھا ہوا ہوتا تھا. اب پتہ نہیں وہ کتا بھی وہاں ہے یا نہیں اور لائبریری کہاں چلی گئی. کافی اچھی ضخیم کتابیں تھیں اور اردو کی کتابیں تھیں. تو اس لحاظ سے ہم چاہیے, ایک دور ایسا بھی تھا جب ہم تعلیمی میدان میں تھے, گلبرگہ کی بڑی لائبریری ہے کارپوریشن کی, تو ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا تھا, جو ٹریننگ دی تھی. تو بشیر آپا نے کہا بیٹے ہمارے دور میں اس لائبریری کو بہت سارے لوگ دیا جایا کرتے تھے, اب کوئی نہیں ہے, چلیے آپ لوگوں کو ممبر بننا ہے. تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں لے جا کر کارپوریشن لائبریری کا ممبر بنایا. جب ہم اندر گئے تو ایسا لگا کہ ہم برسوں سے بند الماری کھول رہے ہیں. ہم تمام طالبات نے کارپوریشن کی لائبریری کی کتابیں صاف کی, الماری صاف کی, پھر جاتے رہے. ہمارا گریجویشن ہونے تک وہ لائبریری باقی رہی. جب وہ لائبریری چھوٹی تھی, بڑی بننا تھا, وہ لائبریری تو بڑی بن گئی, مگر اردو کے تمام الماریاں اب کباڑی خانے میں ہیں. کیوں؟ میرے اساتذہ نے میرے ساتھ یہ کیا, لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں لے جا سکی. کام کس کا تھا؟ میرا تھا. بحیثیت معلم میرا تھا. وہ کام تو میں نہ کر سکوں, اب میں سوچتی ہوں تب ہمیں کرنا چاہیے. تو محفل نساء وہ کام جو یہاں کی محفل نساء بہت بڑے فرانٹ پر کرتی ہے, ہماری چادر بہت چھوٹی سی ہے. یہاں سے جتنے پروگرام ہم کو ملتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو پورا کریں. کلام ویژن ہو, یوم اردو کے مقابلے ہوں, یا پھر جو بھی دیا جاتا ہے ہو, لیکن اس سے ہٹ کر ہم موضوعاتی جو کانفرنس کرتے ہیں, جو ہم وہاں پر سیمینار رکھتے ہیں, وہ ہمارے پورے بنیادی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ٹیچرز میں ایک احساس پیدا کر سکیں. میں کسی میں جوش نہیں پیدا کرنا چاہتی, کیونکہ جوش آج کل جیسے کہا تھا جذبہ ہونا چاہیے, جوش سے کام نہیں ہوتا. تو میں جوش اور جذبہ بہت بڑی چیز ہے, لیکن میں چاہتی ہوں میں صرف احساس پیدا کروں گلبرگہ شاخ محفل نساء کے ذریعے, اور یہ کوشش جاری ہے. انشاءاللہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے, میرے ساتھ وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں یا پھر جن کے ساتھ میں کھڑے ہوئی ہوں, میں تو سیکریٹری ہوں, ڈاکٹر شمیم سریا, سبیہ سلطانہ, یہ 2 ایسے بھائی ہیں وہاں پر جن کی سرپرستی میں وہاں کا کام بہت عمدگی سے ہو رہا ہے. اور ہر رکن وہاں کا, آپ کی طرح یہاں کوئی کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے, کسی چیز کے لیے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤں میں, ہمارے لیکچرز, ہمارے ٹیچرز کہتے ہیں, جو سارے ممبر ہیں 20 کے 20 پورے ٹیچرز اور لیکچرز ہیں, وہ کہتے ہیں کوثر اگر ہم 90,000 1,20,000 تنخواہ کما رہے ہیں تو کیا ہم سالانہ 1-2 ہزار نہیں دے سکتے؟
किसी प्रोग्राम के लिए हम 1,000 नहीं दे सकते, तो 20,000 आसान सी बात है। तो हमारे यहाँ हम इतने ही छोटे से बजट पर ये काम ज़रूर करते हैं। और सबसे बड़ा काम अब हमारा यही है कि उर्दू मदारिस में दाखिलों का काम हो। जैसा कि अभी यहाँ एक दरख्वास्त, एक मशवरा पेश किया गया, जैसे अजीजुल्लाह सर ने भी कबूल किया। मेरी भी ख्वाहिश है कि ऐसा एक वक्त ज़रूर जाए। अगर गुलबर्गा के लिए कहा जाए तो वहाँ एक फेडरेशन है, जो स्कूल का तमाम स्कूल का एक फेडरेशन है, जब वहाँ अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है, तो शायद उस वक्त को मैं आपके साथ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और बुनियादी तौर पर हम वहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं वो यही है, आप में हम जोश और जज्बा पैदा ना कर सकें सही, ये एहसास तो पैदा करें। हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन ने, जो हमारे आबा अजदाद ने जिस तहजीब, जिस कल्चर, जिस ज़बान को हिंदुस्तानी तहजीब की निशानदही की थी, उसे दफन होने से बचा लें। वरना फारसी की तरह आप याद रखें, उर्दू जिंदा रहेगी। आपके घरों से तो उर्दू जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे, रेख्ता पे, गूगल पे, सब जगह उर्दू जिंदा है। किसी मुल्क में ना सही, आपके घरों में जिंदा रहे तो समझेंगे आप कि आप अभी शाही शान और आनवान के साथ जिंदा रहेंगे। हमारी ये कोशिश ज़रूर बाकी रहेगी। और महफिल निसा बेंगलुरु की मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने हर चीज़ में शाख को शामिल रखते हैं, जिसके लिए उनके इस इखलास के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और महफिल निसा बेंगलुरु के इन तमाम कामों के लिए सलाम पेश करते और उनसे ये कहते, आपके घर के बड़े जो उर्दू पढ़ते थे, क्या उन्होंने गलत किया? नहीं किया। अब सरकारी स्कूल में क्यों नहीं शरीक करते आप? उनके जो दलाइल थे बहुत खूबसूरत थे सर। अगर मैं दलाइल पेश करूँ, ये दलाइल मैंने उस वक्त कमर साहब बहुत जिंदा थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, यही दलाइल को मैंने पेश किया था। तो असातिज़ा मेरे घर पर आए थे कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। आज वो चीज़ें अगर जो पेरेंट्स ने कहे तो मैं अब यहाँ कहूँ तो बहुत गलत होगा। हम इसको देखते भी हैं सर। पेरेंट्स दलाइल पेश करते कि हम दूसरे स्कूल क्यों डालते हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, उस स्कूल में 4 टीचर हैं जो बारी बारी आते हैं। आज 2 आएंगे, कल 2 आएंगे, तो फिर क्यों भी जाए पेरेंट्स? आप पहले अपना रवैया बदल लीजिए। वो तो वो जो चीज जहाँ पर ईमानदारी से काम किया जा रहा है, मैं नहीं किया जा रहा, नहीं बोल रही, नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एडमिशन नहीं डालते तो उसकी क्या वजह? उनको कैसे कन्विंस कराएंगे? हम इसी अंदर से कन्विंस करा सर, अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन अब मुश्किल ये हो गई है, जैसे कि मोमिनपुरा में गवर्नमेंट स्कूल था और तकरीबन काफी अरसे से था, आज़ादी से पहले से था। वो स्कूल निज़ाम के दौर में वहाँ कायम हुआ था। सैयद बारे वालों से बिल्डिंग ले गई थी, मैंने भी वहाँ तालीम हासिल की। और तकरीबन वो 90 के बाद 2000 से पहले उस बिल्डिंग को उस खानदान वालों ने चाहा कि वो खाली कर दें, वो खाली कर दी गई। उसके बाद जो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी है, उस मोमिनपुरे से काफी दूर है। अब मोमिनपुरे के बच्चे तो वहाँ नहीं जाएंगे, जाहिर बात है, हम प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती ये है, वहाँ आलमीन के कई स्कूल मौजूद हैं, उर्दू में ही पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब वो जो गवर्नमेंट स्कूल बना है काफी दूर है, यहाँ के बच्चे वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। कुछ मसाइल ऐसे भी हैं, लेकिन मैं इस पर भी राजी रहती हूँ कि कम से कम उर्दू मीडियम में तो है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल जिंदा रहे, तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद, उर्दू की मादरी जबान की हैसियत से कितने लोग कबूल करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि जब आप इलेक्शन के लिए अपना नाम लिखते हैं, वोटर लिस्ट में लेते हैं, तो अपनी मादरी जबान लिखिए। उसी तरीके से उर्दू की तादाद अगर आपको बताना है मादरी जबान की, तो आपका बच्चा उसी जबान में पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू के स्कूल के बच्चे हमेशा कन्नड़ में फेल होते हैं। कभी उस्मानिया दौर में पढ़ने वाले या हमारे दौर में पढ़ने वाले कन्नड़ में नहीं फेल हुए। अब क्यों फेल होते हैं? ये अपनी हाँ खामियां हम दूर कर लें तो कोई भी मायूब बात नहीं। जैसा कि मुल्ला साहब ने कहा, हम मॉडल पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। Assalamu alaikum everyone and a very good evening to one and all present here. I, Saima Farheen, and I, Akhila Bibi, from Al-Amin Institute of Information Science, we present you our project named Scam Alert. So, हमारा प्रोजेक्ट जो है आजकल जो होने वाले स्कैम्स हैं उसके बारे में बताता है। जैसे आप ले लो कि हाँ, जैसे आपको कभी भी कहीं से भी आजकल कॉल्स आते हैं कि हाँ आपकी बैंक में 10,000 रुपए की लॉटरी आई है आपको, तो आपके बैंक डिटेल्स दीजिए। ऐसा आया है आपको? बेसिकली ऐसा होता है कि एक स्कैमर जो है कुछ लोगों को, ज्यादातर जो है 50+ लोगों को या फिर 40
40 साल से पहले लोगों को कॉल करते हैं, बिकॉज जो अगर कम उम्री है तो आजकल के जमाने में सबको पता रहता है कि क्या स्कैम चल रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी आर अलर्ट अबाउट न्यू क्राइम्स एंड ऑल. लेकिन जो ज्यादा उम्र के हैं तो उनको पता नहीं चलता कि ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं करके. तो आजकल जो है ऐसे स्कैम्स बहुत बढ़ रहे हैं कि दे विल गेट अ कॉल, उनको एक कॉल आता है और उनको बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए. तो हम क्या करते हैं, जो ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं वो समझते हैं कि अच्छा आ रही है इनकम तो ले लेते हैं करके वो अपना CVV नंबर दे देते हैं या फिर OTP दे देते हैं या फिर कभी कभी तो पासवर्ड भी दे देते हैं. ये बहुत गलत हो रहा है. तो हमने इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ये स्कैम होता है और हम दो किरदारों के डिफरेंस बताएंगे आपको कि हमारा एक किरदार है इलीट पर्सन, जिसका मतलब है जो लोग आजकल के टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, और एक है विक्टिम, जिसका जो लोग हैं जिनको पता है क्राइम्स के बारे में, पता नहीं है ये क्राइम्स के बारे में. तो हम एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जहां ये स्कैमर जो है पहले ये इलीट पर्सन को कॉल करेगा, फिर ये स्कैमर जो है विक्टिम को कॉल करेगा, और इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे कि कौन जाल में फंसता है और कौन नहीं. तो ये रिकॉर्डिंग है स्कैमर और इलीट पर्सन के बीच में, जिससे ये सब इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी के बारे में. हेलो, congratulations sir, you have won a cash prize of 50,000 from our special customer loyalty program. Hello, I know this is a scam, don't try to. तो आपने देखा जब कॉल इलीट पर्सन को गया, मतलब जो लोग इससे वाकिफ हैं, तो क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ कॉल रख दिया कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ. अब हम ये देखते हैं कि जब कॉल विक्टिम को जाता है, मतलब ये लोग जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं है, तो तब क्या होता है. Hello, Congratulations ma'am, you have won us 50,000 from our bank lucky draw contest. oh is it? Go ahead. Just a simple verification. Please share your account number and CVV so we can transfer the money. Sure, my CVV is 655. तो जैसे ही CVV नंबर आता है तो हम ये पर्दा खोलते हैं कि CVV नंबर लीक 655 लीक हो गया है, जिसे हमने रेड पर्दे का इस्तेमाल किया है जो देता है डेंजर का सिग्नल. तो अब हम दिखाते हैं इसका नेक्स्ट कन्वर्सेशन. Now I just need your online banking password to complete the process. But isn't that confidential? Oh, don't worry. This is just for verification. Without it, we cannot process the transaction. No, I don't think so I can share that. No problem. You will receive an OTP in a few seconds. Just share that OTP with me and the 50,000 will be transferred instantly. Oh, I got that. The OTP is 2765. Great. तो अब स्कैमर ने जो है OTP पूछा, पहले उसने पासवर्ड पूछा, लेकिन पासवर्ड तो एक कॉमन सेंस है ना कि हम किसी को भी पता होता है कि पासवर्ड हाँ शेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन OTP तो सबको दे सकते हैं. अब हमारे घर में डिलीवरी से कॉल आया है तो हम क्या करते हैं, OTP तुरंत शेयर कर देते हैं. तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि OTP से इतना फर्क पड़ सकता है. तो इसलिए जब वो OTP मांगता है तो ये तुरंत अपना OTP दे देती है, जिससे क्या हमने लिखा है कि OTP revealed scammer has access to the bank amount 40,000 withdrawn. तो ऐसे हो रहा है. The moment you give the OTP, the scammer has access to the bank and the entire amount of your bank is transferred. तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कि update regularly, update your passwords, keep two-step authentication. चाहते हैं 2 स्लोगन्स है हमारे जो कहता है update regularly, secure endlessly और modernize your defense, update to protect. Thank you so much. आलमीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज से MSc की तालिबात हैं. इन्हें बता दिया गया था कि कंपटीशन में आना है, मगर इत्तेफाक क्या हुआ उसका पस मंजर पूरा नहीं मालूम था. ये कंपटीशन के तौर पे आई हुई थी, तो मैंने अजीजुल्लाह बेग साहब से कहा था इससे मुताबिक आपको तासुरात पेश करना है और अपने फैसले से मुताला भी करना है. तो मैं अजीजुल्लाह बेग साहब से ख्वाहिश करती हूँ कि 1-2 पल के लिए आए और अपने तासुरात पेश करें. आपने देखा कि आलमीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से 2 तालिबात अपना एक मॉडल तैयार करके लाए हैं. ये इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है. सबसे पहले तो ये कि आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं वो कई तरह के हो रहे हैं. उसकी एक किस्म नहीं है, तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं. उसमें
कुछ ऐसे होते हैं कि आपको इनाम मिला है या कुछ हुआ है, या फिर ये कि आपको मदद किया जा रहा है किसी खास तकरीब के लिए, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं। उसके बारे में सबसे पहले तो बच्चों को, तलबा और तालिबात को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है कि स्कैम किस तरह हो रहे हैं। एक दूसरा ये कि इन चीज़ों को, जैसा अल्लाह साहब ने अभी कहा कि इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या वसाइल हम पैदा कर सकते हैं, किस तरह उसको आवाम तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हालांकि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से भी इश्तिहारात जारी हुए हैं कि आवाम ऐसे धोखे न खाएं, इस तरह के स्कैम से बचें और उसे किस तरह बचना चाहिए उस पर भी मालूमात दी जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल हम अखबार पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम लोग अखबार पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवान तबका ज़्यादा उसकी तरफ माइल रहता है। सीनियर अफराद जो हैं वही इसका शिकार हो रहे हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड आदमी, बहुत से खास बड़े अच्छे ओहदों पर जिन्होंने काम किया है और रिटायर होकर घर बैठे हैं, उन लोगों ने लाखों रुपए इसमें गंवाए हैं इस तरह के स्कैम्स में। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है, मैं इसकी सताइश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ इन बच्चों को, और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस काम को आगे बढ़ाएं और इसको किस तरह मुश्तहर करना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर सोचें। शुक्रिया सर। चूंकि ऐलान के बावजूद भी सिर्फ आलमीन की एक टीम मौजूद थी, इसलिए सोचा गया कि सिर्फ ताल्लुक़ के असातिज़ा मौजूद रहेंगे, पेश किया जाए। मैं उन्हें आप तमाम से ख्वाहिश करती हूँ कि इस बच्चों के हौसला अफजाई के लिए ज़रूर अपने तालीम में जाएँ। मैं आप अजीज़ुल्लाह बेग साहब से ख्वाहिश करती हूँ कि इन बच्चों को अब मोमेंटो से नवाज़ें। यहाँ 2 कराटा मास्टर मौजूद हैं, सैयद फवादुल्लाह साहब और फिरदौस साहिबा मौजूद हैं, तो मैं उनसे ख्वाहिश करती हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं। आज इस प्रोग्राम को मैं एक्चुअली दूसरे स्कूल का प्रोग्राम था, तो मुझे तबरेज़ अहमद जो हमारे स्कूल के सदर हैं और माशाल्लाह बहुत सारे जो एसोसिएशन थी उसमें मुझे मालूम नहीं कि कौन से एसोसिएशन, जस्ट मेरे एज ए गुड फ्रेंड है, उन्होंने इन्फॉर्म करे कि आज एक उर्दू का एक प्रोग्राम है जिसमें आप आओ और वहाँ पे आपकी जो सेल्फ डिफेंस की मुतालिक कुछ भी आप जो वुमेन सेफ्टी के बारे में या कुछ भी जो सोसाइटी में आज जो चल रहा है उसके जो हमारे लड़कियों को कुछ भी सेफ्टी के टेक्निक्स के बारे में कुछ अगर बोल सकती हैं तो पहले मैं बहुत खुश हुआ कि माशाल्लाह एक उर्दू जो हमारी मादरी जबान है उसका एक एसोसिएशन है और उसके मुतालिक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हो रही, तो वो देखने के बाद से पहले आया। और दूसरी बात जो मुझे बोला गया कि आप कुछ सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स भी आप सुनो, तो सेल्फ डिफेंस से ज्यादा मैं वुमेन सेफ्टी के बारे में बोलने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मेरे साथ फिरदौस बानो मैम है, वो सेल्फ डिफेंस में माशाल्लाह पिछले 10-12 साल से वक्त निकाल अपने मसरूफिया वक्त से निकाल को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग सीखने आ रही। उन्होंने जब आए थे उन्होंने एक ही बात बोली, मैं मेरे वास्ते से ज्यादा मेरे जो स्कूल से या मेरे जो फैमिली में कनेक्टेड हैं उनको सबको मैं सिखाना करको एक ऑब्जेक्टिव लेको है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रख ले को आज तक भी उन्होंने सीख ले को माशाल्लाह आप ब्लैक बेल्ट सेकेंड हैंड जो करीबन 10 बेल्ट के बाद आती है वो ले को माशाल्लाह सीख ले को ही। मेरा नाम सैयद फवादुल्लाह, मैं वर्ल्ड फुनोकोशी शोटोकान कराटे ऑर्गेनाइजेशन साउथ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कम्युनिस्ट एक्ट में और 20-22 साल से इस फील्ड में
सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अलग अलग स्कूल को, यूनिवर्सिटीज को, अलमिन स्कूल में मैं करीबन एक बहुत साल से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में भी दे लगा हूँ, शायद मुझे वहाँ पहचान दिया। इस बार मुझे हॉस्कोटे में एक अलमिन स्कूल है, उसमें मुझे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कराने का से लेके गए थे, शायद उन्होंने फाजिल भैया, अफजल भाई उन्होंने मुझे पर्सनली लेको जाको एक ट्रेनिंग करा उधर। और लिंक बैक टू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमें जो वुमेन्स में देती, अब मार्च 8 को वर्ल्ड वुमेन्स डे करके एक सेलिब्रेट होता है, हर मार्च 8 वुमेन्स डे को हमें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कॉर्पोरेट कंपनीज में, बल्ला के कंपनीज में देती। वो छोड़ को हर एक महीने में एक ना एक यूनिवर्सिटीज में हमारा सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम होता है। क्या सिखाती इसमें सेल्फ डिफेंस में बोले तो, जो वुमेन जो इंडिपेंडेंटली स्कूल से घर या कॉलेज से या जॉब से जो भी जाती, जो बेस्ट बेसिक सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सीख को उनको कोई भी अनसर्टन सिचुएशन में उन्होंने एड्रेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने जा रही पीछे से कोई अनजाना आदमी या कोई भी उनके पर्स छीनना चाहे या कुछ हाथ रखना चाहे या कुछ भी करना चाहे, तो उनका रिएक्शन क्या होना? आपका नाम सर? सैयद मोइनुद्दीन। माशाल्लाह से। नहीं, कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ हाथों से दिखाऊं या हवा में बोलूं मालूम नहीं पड़ेगा, तो कोई तो होना चाहिए कि कुछ करूं तो क्या करना है, बराबर। तो अभी फॉर एग्जाम्पल कोई हाथ शेक करते हैं, ठीक है, तो जनरली अगर कोई आगे वाला हाथ ना छोड़े तो हम क्या करेंगे? ये हाथ से इस्तेमाल करेंगे मारने की या कोशिश करने की या खींचने की, या पैर इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बराबर, हाँ कि ना, बराबर। तो आप बोले सर अगर आप अपने हाथ पकड़ रहा हूं तो जनरली क्या क्या कर सकते हैं? हमें मार सकते हैं, हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट, और भागने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो ये जनरली है। तो सेल्फ डिफेंस में हम थोड़ा टेक्निकली वे दिखाते हैं जिससे कि अपोनेंट का जो प्रेशर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने हाथ पकड़ा है, बराबर, तो मैं खींचूं या ठेलूं या मारूं, ये कॉमन चीज। ये छोड़ के अपना दायां पैर आप पकड़ के रहिए कि देखना चाहिए कि एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। राइट साइड, ओके, ठीक है। अगर मार भी हूं तो फीमेल है तो आउटसाइड बॉडी, लेकिन हम फिजिकली थोड़ा कंपैरेटिवली लेस चलते हैं। अगर मारते हैं तो वो मार भी ले लेगा लेकिन छोड़ेगा, अगर इंटेंसली वो पकड़ा है तो, बराबर। मैं आपको हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूं, आप देखिए अगर छुड़ा सकते हैं क्या 3 सेकेंड? नहीं, आप पकड़िए, ठीक है। ये हाथ ही यूज करना है लेकिन मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए, ठीक है। कोई काउंट कर सकते हैं? देखते हैं, आप टाइट पकड़िएगा सर, कोई भी काउंट करेंगे 1। तो उसी हाथ को अपने ही हाथ में देना और कॉम्प्रोमाइज करना। उनका बॉडी जो पोस्चर होता है अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, कितना भी घट हो, इंसान अगर पकड़े कितना भी घट हो, ये जब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो पावर रिलीज हो जाए। Thanks for the at least one lady clapping. That will motivate us to do more. Okay. हम क्या करेंगे? पहले तो हम घूमेंगे, वरना हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, वरना अगर कुछ करते हैं तो ये फटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर वो इंटेंशनली कर रहे हैं तो वो बहुत हार्ड रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे सेफ्टी टेक्निकली ये हाथ को इधर ही पकड़ना है, ये हाथ को सर आप आराम से नहीं करते, आप घट पकड़िए, आप ये हाथ अगर सिंपली यहाँ छोड़ना नहीं है, पकड़िए सर, सिंपल टेक्निक। यहाँ हम ये नहीं सिखा रहे कि आपको ब्लैक बेल्ट बना देंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्फ डिफेंस में जो भी नॉमिनल ट्रेनिंग हो वो दे सकते। अगर आपको अच्छी एडवांस सीखनी है क्लास में आके सीख सकते हैं। अगर कोई ऐसे पकड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले तो नाखून या तो फिर मारना या तो नी यूज नॉर्मली जनरली दिखाया जाता है, या कुछ भी कर सकते हैं। बट सेल्फ डिफेंस में मैं जैसे बोला कि पहले के 3 सेकंड में आपको बाहर आना,
वैक्यूम क्रिएट करना है। सर हमें थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको टाइट पकड़ना है। मैं दिखाना चाहता हूं कि वो असल में निकलेगा या नहीं, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा नहीं अब मत, लेकिन आपको टाइट पकड़ना है, दिखाना है कि वो होगा नहीं, ठीक है। हाथों को ऐसे पकड़ो सिर्फ, बस मैंने मेरा प्रेशर या जो भी है आराम से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हाथों को ऐसे किया तो ये क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। उस टाइम पे वो 3 सेकेंड्स के अंदर वो जो प्रेशर होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। 3 सेकेंड के अंदर जैसे ही मारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, आप निकल सकते। जैसे पीछे पकड़ने का है या बहुत सारे। और इसमें बेसिक अगर अवेयरनेस बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल आप अवेयरनेस के लेवल में बोले तो अगर कोई इंडिविजुअली फीमेल अगर टैक्सी भी पकड़ती है तो एक जनरल आइडिया है कि वो कॉल करे अपने भाई को, फादर को, हस्बैंड को या बेटे को या किसको भी, और लाउडली बात करे, इसलिए कि मैं इस गाड़ी में इस टाइम पे बैठी हूं और यहां से मैं यहां रीच होने वाली, जो वो ड्राइवर सुन पाए। ये जनरल आइडिया, जिससे कि उसको मालूम है कि ड्राइवर को मालूम पड़ जाएगा कि मैं इन्फॉर्म्ड हूं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, ठीक है। जनरली हम और दूसरा क्या करते हैं, घर में बाहर निकलते वक्त हम चाबी उठा के कहीं मैट के नीचे या पॉट में या सॉक्स में डाल के कहीं, हम सोचते हैं कि वो हमारा सेक्रेट हाइड आउट है, ये यूनिवर्सल हाइड आउट है, सबको मालूम है। ये आप मैट के नीचे रखो या पॉट में रखो या ऐसे कुछ कूड़ादान के पेपर में डाल के ऐसे रख दो, सबको, चोर को सब मालूम है, ठीक है। तो ये चीजें जो अवेयरनेस के लेवल में, अगर कोई वॉक कर रहे हैं, वॉक करते समय ट्रैफिक नॉर्मली पीछे से ही ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जो भी अटैकर होता है, तो ही नीड अ स्लो मोशन, कांट कम 40-60 फीट में और स्नैच, ही वांट टू स्लो डाउन, सो इसलिए वो क्या करते हैं, पीछे से आते हैं। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो ये सजेशन है कि आप ऑपोजिट ट्रैफिक में वॉक करो, नॉट विद द ट्रैफिक। अगर विद द ट्रैफिक है तो पीछे से कोई भी आ सकता है, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो ट्राई गो ऑपोजिट द ट्रैफिक, सो इफ एनीवन वांट्स टू स्टॉप और स्लो डाउन, यू नो बेटर दैट समवन इज स्लोइंग डाउन। ऐसे बहुत सारे हैं। बेंड हो गया। See here, क्या होता है, थोड़े पार्टिसिपेंट दे वांट भी, अगर सेल्फ डिफेंस का सेशन का कुछ प्लानिंग कर सकते हैं तो आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू कम एंड परफॉर्म। तबरेज अहमद इज अवर सोल कोऑर्डिनेटर। Okay, if at all, based on such request, you can put anything Karate Fawad in Google. You'll get my Karate Fawad, KARATE FAWAD, my number और Facebook ID और सबसे पहले शाइस्ता मैडम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। वो बहुत अच्छे नए नए प्रोग्राम बनाती हैं और सच तो ये है कि हमारे मुकाबलों को देखे महफिल निसा की अपनी नोयत के बहुत मुनफरिद होते हैं। और उनके साथ जो टीम है वो टीम भी वाकई शाना बशाना चलने वाली नहीं है, बल्कि हाथ पकड़कर उनके साथ दौड़ने वाली है। आज सुबह में मैंने बैठे हुए हमारे इनसे कहा कि ये लोग आगे जा रहे हैं तो लोग दौड़ने ही वाले हैं। वाकई ये चीज दौड़ने ही वाली है। तो मैं सबसे पहले शाइस्ता यूसुफ साहबा का, उनकी सारी टीम का, यूनाइटेड काउंसिल का, इन तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज यहाँ आप जो तमाम मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है कि जो प्रोग्राम पेश किया जाता है आप चाहते हैं कि उसमें शरीक हों और ये सबूत दें कि वाकई हम मुहिब उर्दू हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप वो मीडिया जो यहाँ मौजूद है, खुसूसन महमूद शाहिद साहब का तो बहुत खुशदिली के साथ, बड़े इज्जत व एहतराम के साथ मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जब भी प्रोग्राम हो महफिल निसा का, चाहे यहाँ चाहे गुलबर्गा, जिस इखलास के साथ आते हैं, वो मीडिया के आदमी ही सही, लेकिन इखलास अपनी जगह होता है। कई प्रिंट के लोग भी आ जाते हैं, आप कोई कॉन्फ्रेंस रखिए, आ जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं मीडिया की चेयर आगे न रखे, अब हम कहाँ बैठे। ये अक्सर मैं गुलबर्गा में भुगतती हूँ। मीडिया का एक लगावा होना चाहिए, फिर उनके चेयर आगे होने चाहिए, सामने 2 टेबल डले हुए होने चाहिए, पानी रखा हुआ होना चाहिए, अगर ना हो तो वो उठ के चले जाते हैं, फिर मुझे दौड़ के वहां तक जाना पड़ता है। तो
छोटा बच्चा जैसे दौड़ रूट के जाने लगे तो हम दौड़ते हैं, मीडिया के लिए मुझे वैसे ही जाना पड़ता है वहाँ, लेकिन शाहिद साहब बिल्कुल अपने खलंदराना अंदाज से बैठे हुए होते हैं। मैं उसके लिए भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन जिन्होंने आज सेल्फ अपने डिफेंस के लिए जो वॉलंटियरली तौर पे ये पेश किया, इसके लिए मैं उन्हें सलाम भी करती हूँ, शुक्रिया अदा भी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक। यहाँ गुलबर्गा से लोग आए थे और नॉर्थ कर्नाटका से लोग आए थे, बहुत सारे छोटे छोटे इलाक़ों से भी लोग आए थे। हमने मुख्तलिफ़ तंजीमों को बुलाया था ताकि वो ये बता सकें कि उनके वहाँ क्या हो रहा है, ये देखें कि उन लोगों ने उर्दू की तरक्की के लिए क्या किया है और क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। हम एक दूसरे से तबादला ख़याल करें ताकि ये पता चले कि हमको आगे उर्दू में कैसे बढ़ना है और वहाँ के मसाइल क्या हैं। अगर मसाइल थे तो उन मसाइल को उन्होंने कैसे हल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया है। देखिए, हमने उनको 2 मशवरे दिए। एक तो ये कि सब जुड़ जाएं और वहाँ क्या हो रहा है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और हमको कम से कम 8 दिन में एक बार हम एक वेब मीट करें और ये बताएं कि वहाँ के पर क्या क्या हुआ है और रिटर्न हमको रिपोर्ट भी भेजें। उससे हमें ये पता चलेगा कि वाकई जो बातें हुई हैं वहाँ कितनी कारगर हो रही हैं, क्या वो वैसा कर रहे हैं वो लोग या अमली तौर पर क्या काम हो रहा है। मुझे लगता है कि संजीदा लोग हैं जो यहाँ आकर जुड़े हैं और इंशाअल्लाह वो लोग ज़रूर काम करेंगे। खुसूसन अभी आपने देखा कि सलीम साहब भी आए हुए थे, तो मुझे अच्छा लगा कि इतनी सारी बातें उन्होंने की और लीडर होते हुए भी सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे लीडरान की हमें ज़रूरत है जो कई तंजीमों को जोड़ सके, कई छोटे छोटे करियों में देख सके। उन्होंने हमें एक ऑफ़र दिया कि हम वहाँ जाएं तो क्या हम आ सकेंगे। हम लोग तो ज़रूर जाएंगे। अगर वाकई उन्होंने बहुत जगह काम किया है और बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तो हम ज़रूर जाएंगे और हमारे मुकाबले भी वहाँ तक पहुँचाएँगे और बल्कि वहाँ की तरीक़ेकार को देखेंगे, उनका पढ़ाने का तरीक़ा देखेंगे, उसको भी बदलना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बात होगी। प्री प्राइमरी की भी बात हो रही है, उस पर भी काम करेंगे। कितने तंजीमें आई थी मैडम, क्या क्या नाम है तंजीमों के? वो लोग हमेशा गूगल मीट किया करते थे, मिलते थे, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी तंजीमें मेरे साथ रहती, वहाँ की भी रहती। तो उनको मशवरा दिया कि उनके जो रिटायर्ड टीचर हैं उनकी एक लिस्ट भेजें। हमने देखा होगा कि अच्छे अच्छे उर्दू रिटायर्ड टीचर मौजूद हैं, बल्कि वही अब अच्छा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा सकते थे। तो उन लोगों से हम काम लें और उनको महल्ले में ऐसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजें जो सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस पे हो, ताकि उनको भी कुछ अपने जितनी भी उनके पास तालीम है वो दूसरों को भी आरास्ता कर सकें। तो बेंगलोर लेवल में क्या काम हो रहा है मैडम? बेंगलोर लेवल में भी यही करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक स्कूल जो अडॉप्ट किया है, जो टैंक गार्डन का स्कूल है, उसमें 10th तक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 बच्चों को हमने कॉलेज में दाखिला दिलवाया है, जिसमें उर्दू भी एक ज़बान उनकी है। और 15 बच्चे अभी अब 1 साल के बाद फिर दूसरे साल में चले जाएंगे। तो ये हमारी समझिए एक कामयाबी है। हमारी फुलवारी मतलब हमारी नर्सरी स्कूल, उसमें अभी 60 बच्चे हैं। पहले से भी चली आ रही है, अब भी बच्चे ज़्यादा हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम बचा कर रख सकें और आगे बढ़ा सकें। आज के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के बतौर हमने उन तमाम कारगुज़ार असातिज़ा को हमारी अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया था, जो कर्नाटक के मुख्तलिफ़ अज़ला से दूर दराज के सफ़र करते हुए आज सुबह जश्न यौम उर्दू में मौजूद थे और फिर उन्होंने अपनी कारगुजारियों से हमें मुस्तफ़िज़ किया। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर और महफिल निसा मिलजुल कर उन असातिज़ा के उन तमाम कारगुजारियों को सुने और मिलजुल कर काम करने के लिए एक ऐसा लाए अमल इख्तियार करें जो बेंगलोर के स्कूलों के लिए भी कारआमद हो और सारे अज़ला के लिए भी। अगर वहाँ पर कोई बहुत बेहतर काम हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे ऐसी कोशिश को उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। अगर यहाँ हमारे पास कोई ऐसा मंसूबा है जो उनके लिए ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित होगा तो उन्हें हम तबादिला ख़याल के साथ
इस मिली जुली कोशिश को एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो है हमारा मकसद था। तो सिर्फ एक साल में एक मर्तबा होता है ये, इसके बाद फिर भूल जाते हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। साल भर हमारी अपनी कारगुजारी और स्कूल्स के गोद लेने के बाद हमारे अपने प्रोग्राम्स पूरे साल के लिए मुरत्तिब कर लिए जाते हैं जश्न यौम उर्दू के बाद, और हम वक्फे से उन तमाम प्रोग्राम्स को मुनक़िद करते रहते हैं। और साल के आखिर में जब जश्न यौम उर्दू होता है तो इसमें सारे अज़ला से और तमाम कर्नाटक से, रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो असातिज़ा आते हैं उनकी कारगुजारियाँ भी सुनते हैं, चूँकि अगले साल हम नहीं चाहते कि सितारों की खोज वाला प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि हमने गुज़िश्ता 12 सालों से इस प्रोग्राम को निहायत कामयाबी के साथ चलाया है। और आज हम ये वक्त की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि हमारे अपने लाए अमल में थोड़ी बहुत तब्दीली जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है, इसलिए हम अपना ख़ुद लाए अमल तय करने वाले हैं। तमाम असातिज़ा की कारगुजारियों को हमने सुना और उसके बाद जो है जो कुछ हमारे पास जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को उनकी अपनी कारगुजारियों से जोड़कर अगले साल इंशाअल्लाह हम निहायत कारआमद तौर पर जो है उर्दू के काज को और उर्दू स्कूलों के मसाइल की यकसुई के लिए एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे।